اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ ہوں گے؟ ریڈی ہیں کلاس کے لیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں شیئرنگ کر کے اور پھر اسٹارٹ کر لیتے ہیں جلدی سے. پہلے ہم یہ والی بک دیکھ لیں. چلیے اچھا جی. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا کچھ یاد ہے؟ یہ کون سی بک ہے؟ چیپٹر 4 پڑھا تھا ٹیچر جی. چیپٹر 4 میں کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم ہم نے حروف جر فی ہاں الا فی اور اللہ کا میننگ بھی بتا دیں. فی مطلب میں الا پر. فی کا مطلب یہ ہوتا ہے اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر. ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں بھی آنا چاہیے، اردو میں بھی آنا چاہیے. اوکے اوکے تو میں دوبارہ سے شیئرنگ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. چلیں، اور ہم نے ورڈز پڑھے تھے کچھ، ان کو ہم دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فی کون پڑھے گا کہ ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے اور ساتھ ساتھ میں ایکسپلینیشن بھی دے دوں. ہاں جی آ جائیں. کون ہے سب سے پہلے؟ انم ہے. انم، عرفان. اچھا طاہرہ بھی ہیں. طاہرہ آپ بعد میں آ جائیے گا. انم آپ پہلے آ جائیے. انم پہلے اے سے انم الفابیٹیکل. تو یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ووکیبلری سے. لیسن 4 کے آپ کے ساتھ شیئر ہے نا انشاءاللہ. انم ریڈی؟ چلیں طاہرہ آپ آ جائیں پھر. ٹھیک ہے باجی. ووکیبلری لیسن نمبر 4 ووکیبلری. فی ان، الا آن، اینا ویئر، محمد محمد، ہوا ہی، غرفت a room، یاسر یاسر، حمام باتھ روم، مرحاد ٹوائلٹ، سماع اسکائی، خالد خالد، حامد حامد، فاطمہ فاطمہ، مریم مریم، عائشہ عائشہ، ختیجہ ختیجہ. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو ہم نے حروف جر سیکھے 2، فی اور الا. آج ہم دو نئے حروف ہم سیکھیں گے اور ان کو ابھی ہم دیکھیں گے بعد میں نیکسٹ پارٹ میں. پھر اس کے بعد ہم نے اینا دیکھا. اینا جو ہے یہ کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے، جملے کی شروع میں آتا ہے ہمیشہ. کبھی کبھی اس سے پہلے من بھی آ جاتا ہے اور کبھی یہ اینا اکیلا آ رہا ہوتا ہے. تو جب من اینا آتا ہے تو اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اینا آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے ویئر. من اینا کا کیا میننگ ہوتا ہے طاہرہ؟ من اینا کہاں سے؟ ہاں کہاں سے. فرام ویئر. من کا مطلب فرام، اور فرام ویئر کہاں سے. کہاں سے. من اینا حامد، من اینا یاسر، یاسر کہاں سے ہے. اور اگر میں کہتی ہوں اینا حامد تو کیا میننگ ہوگا؟ من کو ہٹا کے اینا حامد، حامد کہاں ہے. حامد کہاں ہے. ویئر از حامد. تو یہ آپ نے بہت اس کو خیال سے آنسر کوشچن کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کوشچن آنسر کریں گے تو من اینا ہوگا تو ڈفرینٹ میننگ ہوگا، اور اینا ہوگا تو ڈفرینٹ میننگ ہوگا. تو آپ اس کو کوشچن کو پہلے سمجھیں. پھر محمد ان کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ جو نیم ہوتے ہیں عربک مردوں کے، ان کے اوپر ہمیشہ کیا آتی ہے؟ 2 تنوین آتی ہے، دمہ کی تنوین آتی ہے. ہاں تنوین آتی ہے. 2 تنوین نہیں ہوتی، تنوین ہی ہوتی ہے، اور اس کو دمتین بھی کہہ سکتے ہیں. دمتین کا مطلب ہوتا ہے 2 دمے. ٹھیک ہے نا، دمتین بھی کہہ باجی سکتے ہیں. کچھ الفاظ میں جیسے یوسف ہے اور یعقوب ہے، ان پہ تنوین نہیں آتی. ہاں ان پہ نہیں آتی، وہ بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ صبر سے کام لیں، ہم وہ بھی پڑھیں گے. ابھی آپ صرف عربی نام پڑھیں. اس پہ ان پر ایک دمہ اس لیے آتا ہے کہ وہ عربی نیم نہیں ہے، نان عربک نیم ہے. نان عربک نیم ہے، ڈفرینٹ لینگویج کے وہ نیم ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی اور بھی ولیم وغیرہ بھی ہوگا, انگلش کے بھی نیم ہوں گے تو ان پہ بھی تنوین نہیں آئے گی, ان پہ بھی ایک ہی پیش آئے گی. تو جو نان عربک نیم ہوں گے, یاد رکھیں مردوں کے نان عربک نیم پہ ایک دمہ آئے گا, اور جو عربک نیم ہوں گے یاسر, علی, محمد جتنے بھی ہیں ان کے اوپر آپ کا تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہوا کا میننگ ہم نے پڑھا تھا ہی, اور ہیا کا میننگ ہم نے پڑھا تھا شی. یہ ہی اور شی کے علاوہ کس کے لیے یوز ہو سکتے ہیں, اور کیا میننگ آ سکتا ہے ہی اور شی کے علاوہ ہوا اور ہیا کا؟ اٹ بھی آ سکتا ہے. اٹ کب آتا ہے؟ اینیمل کے لیے, جانور. اینیمل یا آبجیکٹس. ہاں, تو ہیومن کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی اس کے لیے اٹ کا لفظ یوز ہوگا, ہی اور شی کا میننگ. کل یہ کوشچن بھی آیا تھا, کسی نے اپنے ٹیسٹ میں لکھا ہوا تھا ہی, وہاں پر اٹ نہیں لکھا تھا بلکہ ہی لکھا ہوا تھا, کچھ اس طرح کا تھا. تو وہ ہم نہیں کر سکتے, وہاں پر اٹ آئے گا. اگر آبجیکٹ ہے تو اس کے لیے اٹ از آن دا بیڈ, ناٹ ہی از آن دا بیڈ. ٹھیک ہے, یا شی از آن دا بیڈ, یہ نہیں کہیں گے کسی بے جان چیز کے لیے. تو یہ سمجھنا ہے آپ نے. اگلی بات جو ہماری ہے وہ یاسرن, پھر عربی نام آ گیا. غرفتن جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے پھر اس کے ساتھ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس پہ تنوین آ رہی ہے. کیسے؟ ہاں, اور تنوین گول تا بھی آ رہی ہے. گول تنوین. ابھی ہم ہاں, ضروری ہے کہ گول تا ہی آئے تو مؤنث ہو؟ نہیں, بالکل نہیں, عربک میں تو بالکل خاص بھی طور نہیں. پہ نہیں ہے. باجی تنوین بھی نہیں, آپ گول تا کی بات کر رہی ہو نا, تو اگر بنتن ہوگا تو کیا وہ مؤنث نہیں ہوگا؟ ہوگا, اس میں بھی تا آیا ہوا ہے, لیکن عربک میں کچھ ایسے نیم بھی ہیں کہ جو عربک وہ مؤنث قرار دی جاتے ہیں نا, جس طرح السما ہو گیا, نار ہو گیا, مطلب اس کے علاوہ بھی جس میں تا مربوطہ یا تا یہ سمائی مؤنث کی وہ جو ہوتی ہے. ایک منٹ, آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کریں, سب میوٹ کریں. جس کو میں نے مائک پہ بلایا صرف وہ جواب دے گا, اور پھر میں نیکسٹ کو بلاؤں گی وہ جواب دے گا. میری کلاس خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے ہیڈ فونس پہنے ہوتے ہیں, بہت شور آ رہا ہے. اچھا, اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ گول تا کے علاوہ بھی اگر کوئی ناؤن ہو تو وہ مؤنث ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سمپل سا جواب ہے. ہو سکتا ہے باجی. مثلاً بنتن ہے تو وہ اس کے اوپر گول تا تو نہیں آ رہی نا, لیکن وہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. فاطمہ کی مثال کسی نے دی تھی, فاطمہ پہ تو گولتا آ سکتی ہے, آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو آ رہی ہے گولتا, لیکن مریم جو ہے, زینب ہے, تو وہ بھی مؤنث نیم ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر بھی وہ بھی مؤنث ہو سکتے ہیں. اسی طرح پھر ہم نے پڑھا تھا حمام اور مرحاد میں کیا فرق ہے. حمام اور مرحاد میں کیا فرق ہے؟ حمام صرف شاور لینے کی جگہ ہوتی ہے, اور مرحاض جو ہے وہ ٹوائلٹ ہوتا ہے جہاں پہ شاور کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو, بس کموٹ وغیرہ. ہاں, تو واش روم کہہ لیں, باتھ روم کہہ لیں. ٹھیک ہے, دونوں الگ الگ ہو گئے. واش روم ہاتھ دھونے کی جگہ, اور باتھ روم نہانے کی جگہ. آمنہ کے اوپر ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ فیمیل کے اوپر ایک ہی جو ہے وہ دمہ آتا ہے, ایک ہی پیش آتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. تو کیا بنتن پہ بھی ایک پیش آئے گی؟ بنتن, یا سوری میں نے خود ہی بتا دیا, بنت کے اوپر بھی ایک پیش آئے گی, دو پیش آئیں گی؟ نہیں, اس میں تو ایک آ گئی تو پھر وہ دوسرا ہو جائے گا. اس میں دو آ سکتی ہیں. نام جو ہے نا, فیمیل نیم, اس کے اوپر جو ہے وہ بس یہ چیزیں کراس کوسچننگ سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا بنتن جو ہے وہ نیم نہیں ہے, اس لیے اس کے اوپر تنوین آئے گی. اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے. آمنہ کے اوپر الف لام لگا سکتے ہیں, محمد ان پہ الف لام لگا سکتے ہیں. وہ تو آلریڈی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے نا, اس میں معرفہ ہے. آلریڈی ڈیفینیٹ ناؤن ان پہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. جو آلریڈی ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر نہیں لگا سکتے. اور اس کا پھر ترجمہ بھی دا یاسر میں نہیں کریں گے, دا محمد میں نہیں کریں گے, کیونکہ الف لام نہیں لگا رہے نا. ہاں, کسی کا یہ بھی کل کوشچن آیا تھا مجھے کہ ہم دا محمد ان کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے جس کو ہم دا محمد کہہ سکتے ہیں. جب الف لام نہیں ہے تو آپ دا نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, جب الف لام لگائیں گے تو ہی دا کا میننگ کریں گے. صحیح ہے, اگر اس کے بغیر ڈیفینیٹ ناؤن آ رہا ہے, چاہے مذکر ہے مؤنث ہے, تو آپ دا کا میننگ نہیں لگا سکتے. مطبخن جو ہے یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے, اور کون سی جگہ؟ کھانا پکانے کی, مطبخن. صحیح ہے. یا جو ہے یہ کیا ہے, پروناؤن ہے یا ناؤن ہے؟
प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है और फीमेल प्रोनाउन है शी। फीमेल। तो आमिना के लिए हिया यूज होगा, ठीक है। अस्साअतु के लिए हिया यूज होगा, और दोनों के मीनिंग में फर्क होगा। अस्साअतु के लिए जब हिया के मीनिंग करेंगे तो इट करेंगे, और फातिमा के लिए या आमिना के लिए करेंगे तो शी करेंगे, सही है। हाँ, साअतुन ही, जैसे हम कहते हैं ना साअतुन, तो इसको अगर जुमला बनाएंगे तो शुरू में हमेशा जब भी जुमला बनाते हैं तो शुरू में डेफिनेट नाउन आता है। आप साअतुन से जुमला स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अस्साअतु अला सरीरी, ठीक है ना, अस्साअतु अला सरीरी, हमेशा डेफिनेट नाउन से आप जुमला स्टार्ट करेंगे। हिया अला सरीरी, हिया जो है ये भी डेफिनेट नाउन है, इसके ऊपर भी आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते। हुआ भी डेफिनेट नाउन है, इसके ऊपर भी आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते, सही है। तो ये भी आपके डेफिनेट नाउन है, क्योंकि ये प्रोनाउन जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं। हाँ, जो प्रोनाउंस होते हैं वो डेफिनेट ही होते हैं। इसी तरह आपने हाजा के बारे में पढ़ा था, जालिका के बारे में पढ़ा था, तो ये हाजा और जालिका भी जो होते हैं ये भी डेफिनेट ही नाउन होते हैं, इनके ऊपर भी आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते, और अगर ये जुमले के शुरू में आए तो ये जुमला बना सकते हैं। जुमले के शुरू में हमेशा डेफिनेट नाउन लाते हैं, तभी तो आपका हिया अला सरीरी आ रहा है ना, क्योंकि ये डेफिनेट नाउन है। हुआ फिल गुरफती आ रहा है, वो डेफिनेट नाउन है। तो इसी तरह जो है आपका अस्साअतु डेफिनेट नाउन है, जब अलिफ लाम लग जाएगा तो डेफिनेट हो जाता है। इसी तरह मोहम्मदुन फिल गुरफती, यासिरुन फिल हरहामी, तो ये भी आपके डेफिनेट नाउन है। लेकिन तर्जुमा करते हुए जब अलिफ लाम आएगा तभी दा का ट्रांसलेशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये बात सही है। अलिफ लाम आएगा तो दा में तक ट्रांसलेशन होगा। क्लास के साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। मदरसतुन और मुदरिसुन में फर्क करना है। मदरसतुन और मुदरिसुन। मदरसतुन जगह का नाम है और मुदरसतुन नहीं, पर्सन का नाम है, पढ़ाने वाले टीचर का नाम, टीचर को कहते हैं। दोबारा से बोले। मदरसतुन स्कूल, मदरसतुन स्कूल, जी हाँ, और मुदरिसुन, मुदर्रिसुन टीचर, उस्ताद, हाँ, पर्सन का नाम है। इसके मीम पे पेश आती है, इसके आखिर में गोल ता नहीं आ रही मुदरिसुन में, ठीक है ना। और इसमें मदरसतुन में क्या आ रहा है, ये आपका गोल ता भी आ रही है और मीम पे जबर आ रही है। तो इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जिनमें कंफ्यूज होते हो ना, उनकी अपनी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करो, उन वर्ड्स पे ज्यादा तवज्जो दो जिनमें कंफ्यूज होते हो। तो ये वाला वर्ड जो है इसमें स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं हमेशा, और उनको क्लियर करें, उनको कोई निशानी रखें ऐसे कि अच्छा ये होगा गोलता होगा तो फिर ये मदरसा होगा, और अगर मुदरिस होगा तो उसमें गोलता नहीं होगी, मीम पे पेश होगी, तो फिर आसानी हो जाती है इंशाल्लाह। जी, ये जो नाम अली लिखा हुआ है इसके एंड पे शद्दा भी है और तनवीन भी है। जब शद्दा आ गई है तो फिर तनवीन क्यों आई है? शद्दा का मतलब और होता है, शद्दा का मतलब होता है कि वो वर्ड 2 दफा यूज हो रहा है वहां पे। 2 दफा जी, जैसे कुर्सी युन है ना, कुर्सी युन, तो कुर्सी युन पे भी तशदीद आती है ना, कुर्सी युन, तो वहां पर भी 2 या यूज हो रहे हैं। जब 2 या यूज होते हैं तो तशदीद आती है, और तशदीद के ऊपर तनवीन आ सकती है, ठीक है। अलिफ लाम के साथ नहीं आ सकती तनवीन, अलिफ लाम के साथ हटा देंगे, ठीक है जी। तो इसमें डिफरेंट सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल ये भी आया था कि अल कुर्सी ही होना चाहिए या के नीचे जेर होनी चाहिए, ये भी एक सवाल था कि अल कुर्सी ही जैसे है ना, कुर्सी, और इसमें डबल या आती है, ठीक है, तशदीद आती है इस पे, और वो कहते हैं कि या के ऊपर क्यों है, जब अलल कुर्सी है, ठीक है, तो अला की वजह से तो जेर आनी चाहिए यहाँ पे, तो ये या के ऊपर जबर क्यों आ रही है? कौन बताएगा इसका आंसर, या के ऊपर जबर क्यों आ रही है? 2 कुर्सी है ना बाजी, वो 2 या है ना, हो सकता है पहली वाली या के ऊपर आया हो वो, और एक या के नीचे ज़ेर आया हो, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तशदीद आती है ना, तो फिर हरकत नीचे नहीं आती, हरकत नीचे नहीं आती, हरकत उस तशदीद के नीचे ही आ रही होती है। लगाने से हो गया ना,
اوکے الکرسی کا تشدید लगाने की वजह से। اچھا اس بات کو اچھی طرح سمجھے، میں بتا رہی ہوں یہاں پر ایک تو تشدید کا یہ مطلب ہے کہ یا 2 بار استعمال ہو رہا ہے، ڈبل لیٹر ہے یہ یا، ٹھیک ہے نا، اس کو مرج کر کے انہوں نے تشدید ڈال دی ہے، 2 یا کو مرج کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر زیر لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں لگانے کی بجائے وہ تشدید کے نیچے ہی لگا دیتے ہیں، تو اگر تشدید کے نیچے ہوگا تو وہ بھی کسرہ ہی ہوگا، اس کو زیری پڑیں گے، اس کو زیر ہی پڑھیں گے، اس کو زبر نہیں پڑھا جائے گا کہ الکرسی یا ہے، یہ الکرسی یا کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ یا کے اوپر آ رہا ہے نا، تو یہ آپ اس کو زیر ہی پڑھیں گے۔ اگر ادھر آئے گا تو پھر زبر پڑھیں گے، تشدید کے اوپر آئے گا تو زبر پڑھیں گے، تشدید کے نیچے آئے گا تو اس کو زیر ہی پڑھا جائے گا، اور پھر یہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی زبر یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ تشدید کے نیچے آئے گا تو وہ کسرہ ہی پڑھا جائے گا، یہاں پھر دوبارہ سے کسرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے۔ تشدید کے اوپر ہوگا تو وہ زبر پڑھا جائے گا، تو زبر نہیں ہے یہ، تشدید کے نیچے یہ زیر ہے، الکرسی یہ ہی پڑھا جائے گا اس کو، اور 2 زیر، ایک 2 زیر نہیں آ سکتے، ایک زیر آئے گا کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے۔ یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں یہیں پہ۔ اس کے بعد آپ کا آ گیا مدرسہ، جامعہ جو ہوتا ہے نا، ہمارا تو جامعہ مسجد ہوتی ہے، بٹ جامعہ تو ان کا مطلب یونیورسٹی ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ سب اسٹوڈنٹ جمع ہوتے ہیں، پورے یعنی شہر کے یا پورے ملک کے اسٹوڈنٹ بعض دفعہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو وہ جامعہ اسی جمع طرح ہو، بڑی مسجد کو جامع مسجد بولتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی اسی طرح ایک طرح سے سب لوگ جمع ہوتے ہیں ڈفرینٹ پلیسز کے، اور تو اس جمعہ کو بھی ہو پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے، لیکن ایک شہر میں ایک بڑی جامع مسجد ہوتی ہے، تو وہاں پہ سب وہ اٹس لائک اے یونیورسٹی نا، وہ بھی یونیورسٹی کی طرح ہی ہوتی ہے، وہاں بکس، لائبریریز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، جماعت ہوتی ہے، جنازہ وغیرہ سب۔ اچھا اس کے بعد زینب لڑکی کا نام آ گیا، اب یہ بغیر گول تا کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی پیش لے گا۔ فصلن کہتے ہیں کلاس روم کو، یہ ورڈ جو ہے نئے جو آتے ہیں، فصلن، کلاس روم، یہ ہماری اردو میں یوز نہیں ہوتے نا، ویسے تو ہم فصل 1 اور فصل 2 کہتے رہتے ہیں، لیکن میننگ ہمیں نہیں آتا، کلاس روم اس کا میننگ ہے۔ انا یہ کیا ہے، انا کیا ہے؟ انا پروناؤن ہے، پرسنل پروناؤن، اپنے لیے جو استعمال کرتے ہیں، ضمیر متکلم، انا، میں، آئی۔ سسٹر آپ اس کو صرف ابھی ضمیر ہی کہیں، کیونکہ باقی لوگوں کو نہیں آتا نا، تو پھر یہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈوز ہو جائے گی، تو وہ وومنٹ کر دیں گے پھر، ٹھیک ہے، نہیں، اوکے تو باجی، ان کے سر میں درد ہوگا پھر۔ تو اب یہ کیا ہوگا، انا جو ہے یہ صرف آپ کا پروناؤن ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہیا اور ہوا پروناؤن ہے، اسی طرح کا پروناؤن ہے، اور یہ بھی اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، بس آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ پروناؤن ہے اور ڈیفینیٹ ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ ہونے کی وجہ سے جملے کے شروع میں آ جائیں تو وہ جملہ بن سکتا ہے۔ ہمیشہ جملے کے شروع میں ڈیفینیٹ اور ناؤن آتا ہے، ہمیشہ آتا ہے ڈیفینیٹ ناؤن، تو انا کے ساتھ بھی جملہ بن سکتا ہے، جیسے انا یوسفو، اب یہ جملہ بن گیا، انا یوسفو، قرآن مجید میں آتا ہے نا، انا یوسفو یا انت یوسفو، آر یو یوسف، انا یوسفو، آئی ایم یوسف، میں یوسف ہوں، تو پورا جملہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا۔ انا کے ساتھ بھی جملہ بن سکتا ہے، کوئی بھی پروناؤن ہوگا، ہوا ہوگا، ہیا ہوگا، انتا ہوگا بھی، انتا بھی ہم پڑھیں گے، تو انتا بھی شروع میں آئے گا تو جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا، بن جائے گا جملہ، کیونکہ یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہوتے ہیں۔ الیابانی بھی ڈیفینیٹ ناؤن ہے، اور یہ کون سا ڈیفینیٹ ناؤن ہے؟ یہ نکرہ سے بنایا ہوا ہے، نکرہ سے بنا ہوا الف لام ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ایسے ہی نکرہ سے بنا کے اس کو لگا لیتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ عرب لوگ جو ہیں، کچھ عرب لوگ جو ہیں جن کی زبان ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ ناموں پہ تو الف لام لگاتے ہیں، شہر و ملکوں کے ناموں پہ، کچھ پہ نہیں لگاتے، یہ ان کی مرضی ہے، ان کی زبان ہے۔ مکہ پہ نہیں لگاتے، مکہ پہ وہ نہیں لگا، مکہ تو، مکہ تا، اس پہ وہ نہیں لگاتے، لیکن مدینہ پہ وہ الف لام لگاتے ہیں۔ پاکستان پہ نہیں لگاتے الف لام، بٹ چائنا پہ لگاتے ہیں، الہند پہ لگاتے ہیں، یابان پہ لگاتے ہیں۔ تو جن پہ وہ لگاتے ہیں ہم نے بھی لگانا ہے، جن پہ وہ نہیں لگاتے ہم نے بھی الف لام نہیں لگانا، حالانکہ وہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے۔ پاکستان از ڈیفینیٹ ناؤن، مکہ از اے ڈیفینیٹ ناؤن، ڈیفینیٹ ناؤن ہے نا، تو یہ آپ نہیں لگاتے وہ لوگ، اور ہم بھی نہیں لگا سکتے پھر۔ اسی طرح وہ الحسن اور حسین کے اوپر کیا کرتے ہیں، الف لام لگاتے ہیں،
ہم اتار نہیں سکتے, ہم الحسن اور الحسین ہی کہیں گے. محمد پہ نہیں لگاتے, ہم نے نہیں لگانا. علی پہ نہیں لگاتے, یاسر پہ نہیں لگاتے. سعید بھی عربی نام ہے, دیکھیں اس پہ تنوین آ رہی ہے. تو عربی نام جتنے بھی ہوں گے ان کے اوپر مردوں کے ناموں پہ تنوین آئے گی, عورتوں کے نام پہ عربی ناموں پہ ایک پیش آئے گی. تو یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے. خدیجہ تو, صفیہ تو, صحیح پڑھنا آنا چاہیے, پروناؤنس کرنا. پھر اس کے بعد آپ کا یہ بھی عورت کا نام ہے. پھر اس کے بعد من. من جو ہے, من کا میننگ, من اور من میں فرق کرنا ہے. من کا مطلب اور من کا کیا میننگ میں فرق ہے؟ من کا مطلب سے, من کا مطلب جو. من کا مطلب کون, ہو کون کون. من کا مطلب کون. جو نہیں پڑھا ابھی ہم نے, ابھی تک ہم نے جو نہیں پڑھا. آپ جو پہ مت جائیں. ابھی ہم نے کون پڑھا ہے, من کا میننگ, اور من کا میننگ سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور الہ کا میننگ ٹو پڑھا ہے. میرے خیال میں یہ دونوں ورڈ آج ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے فی اور اللہ پڑھا ہے, تو یہ دونوں آج ہم پڑھ رہے ہیں. من, فرام, اور الہ, ٹو. اچھا, ٹو ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں, ٹو دا بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہیں. الہ کا مطلب. اور یہ کیا ہیں دونوں, من اور الہ, ان کو کیا کہیں گے, کون سی حرف جر کہیں گے. ہاں, پریپوزیشن بھی کہیں گے. اچھا, انتا کیا ہے, انتا کیا ہے, یہ بھی پریپوزیشن ہے. نہیں, یہ پروناؤن ہے. یہ ضمیر ہے. ویری گڈ. سارے کانسیپٹ کلیئر کریں. اگر گڑبڑ ہو گئے نا تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے, فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کھانا بناتے ہیں نا, شروع میں کسی نے چاول بنائے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کیسے بن گئے ہوں گے نا, کھچڑی بن گئی ہوگی. وہ چاول بنائے ہوں گے لیکن کھچڑی بن گئی ہوگی, جڑ گئے ہوں گے. لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کو پکانے آ جاتے ہیں ایک ایک دانہ آپ کا. کیسے بنتا ہے بریانی, کیسے بناتی ہیں آپ. تو یہی حال پڑھائی کا بھی ہے. شروع میں چیزیں آپ کی مکس اپ ہوں گی دماغ میں, لیکن آہستہ آہستہ وہ بائی دا ٹائم اگر آپ جڑے رہے, اسکپ نہ کی کلاسز, اپنا ہوم ورک کرتے رہے, تو وہ ایک دم سے کلیئر ہوں گی چیزیں. ایک ایک چیز الگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے, ہوم ورک کرنے سے اور ہر چیز سے. اچھا جی, اس کے بعد آپ کا خرجہ ہے. خرجہ ازا, خرجہ کیا نون ہے, ورب ہے, ورب, ہاں. فعل ہے. اچھا, اس کو نون کیوں نہیں کہہ رہے, مجھے یہ بتائیں. مجھے بتائیں کہ اس کو نون کیوں نہیں کہہ رہے. کام ہو رہا ہے نا, کام ہو رہا ہے. ہاں, اس میں کام ہے اور اس میں زمانہ بھی ہے اور اس میں کام کرنے والا بھی ہے. تین چیزیں ہیں اس میں. کام کرنے والا ہی, اور لیفٹ, لیفٹ جو ہے لیو نہیں کا, لیفٹ کا ہے. یعنی اس میں پاسٹ ٹینس بھی ہے, پاسٹ ٹینس بھی ہے اس میں, اور اس میں ورب بھی ہے. یعنی وہ چلا گیا, ہی لیفٹ. ذہبہ, ہی وینٹ. اچھا, ہی لیفٹ کا مطلب ہوگا ہی ایگزٹڈ, یعنی ہی لیفٹ دا روم, یہ مطلب ہوگا. خارجہ کا مطلب ہے کسی جگہ سے باہر نکل جانا, باہر نکل جانا. اور ذہبہ کا مطلب ہے ہی وینٹ. اس کا مطلب بھی تقریباً ویسے ہی ہے, بٹ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے گھر سے نکلنا, مسجد سے نکلنا. ٹھیک ہے نا, یہ والا جو خارجہ ہوتا ہے, ایگزٹ کرنا کہیں سے, مال سے نکلنا. بٹ ذہبہ کا مطلب ہے وہ چلا گیا, وہ یہاں تھا بٹ ابھی چلا گیا. صحیح ہے, کہیں بھی چلا گیا. اچھا, مدیر جو ہوتا ہے یہ ہیڈ ماسٹر کو بھی کہتے ہیں, پرنسپل کو بھی کہتے ہیں. ڈین جو کالج کا ہوتا ہے, DEAN, وہ بھی ہوتا ہے مدیر. تو آپ کوئی بھی میننگ لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی یاد کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی بک ہے اس کو فالو کریں, پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر. ٹھیک ہے, چلیں اب یہ اتنا ہی ہم رکھیں گے. اب ہم بک پہ چلتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ کنٹری کا نیم ہے الفلپین. تو اردو میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ عربی میں, اور اردو میں تو پے ہوتا ہے لیکن عربی میں نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے نا, قرآن مجید میں پے کا لفظ نہیں آتا, اس کی جگہ با یوز ہوتا ہے. اس لیے پاکستان کہتے ہیں, پاکستان نہیں کہتے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پاکستان پہ تو الف لام یہ لگاتے نہیں عرب لوگ, ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو بیچارے کو. لیکن الفلپین پہ وہ الف لام لگاتے ہیں, الہند پہ بھی لگاتے ہیں. یہ ان کی مرضی ہے نا, یہ ان کی مرضی ہے, ہم نہیں کچھ کر سکتے. ان کی لینگویج ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے کہ وہ کیا یوز کر رہے ہیں. سوکن کا مطلب یہ نیا ورڈ آیا, سوک ہوتا ہے جیسے گولڈ سوک ہوتی ہے نا, فش سوک ہوتی ہے. تو سمک سوک جسے کہتے ہیں, سمک کا مطلب فش ہوتا ہے نا, سوک. تو سوک جو ہوتی ہے نا, گولڈ سوک سے یاد رکھیں. گولڈ سوک, سونا مارکیٹ جسے کہتے ہیں نا, مارکیٹ. تو گولڈ سوک سے اگر اس کو یاد رکھیں گے تو سوکن کا لفظ آپ کو یاد ہو جائے گا, اس کا مطلب مارکیٹ ہوتا ہے.
और अभी इतना ही है लेसन 4 की, यही वोकैबुलरी थी। अभी हम चलते हैं अपनी बुक के ऊपर और हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह यहाँ से बे पार्ट। ठीक है, अभी आप तायरा छोड़ दें माइक, यास्मीन आप आ जाएं। जज़ाकल्लाह बाजी, जज़ाकल्लाह खैरन। हाँ, समझ आया जो मैंने रिकैप करवाया आपको? रिकैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी कोई दिमाग में डाउट है ना तो मुझे प्राइवेट में छोटा सा रिकॉर्डिंग मैसेज छोड़ के उसको दूर करें, ठीक है? यहाँ मेरा डाउट है, ये मुझे प्रॉब्लम होगी। ठीक है मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फौजिया रेहान बोल रही हूँ। मुझे खरजा और ज़हाबा का थोड़ा सा डाउट है कि हमें कहाँ खरजा लगाना है और कहाँ ज़हाबा, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अभी आपको यही बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, ठीक है? खरजा के साथ आप देखेंगे कि आगे हमेशा मिन आएगा। खरजा के साथ क्या यूज होगा? मिन। जब मिन आएगा ना तो मिन का मतलब होता है फ्रॉम, यानी वो कहीं से निकला है। खरजा मिनल मस्जिदी, मिनल मस्जिदी। तो खरजा के साथ आप जब मिन आएगा ना तो इसका मतलब होगा कि एग्जिट का मीनिंग करना है। एग्जिट तो समझती है ना, एग्जिट का मीनिंग करें। अगर आप लेफ्ट का मीनिंग करेंगे तो लेफ्ट और ज़हाबा में इतना कोई फर्क नहीं है खास, है ना? लेफ्ट चला गया, ज़हाबा भी चला गया, खरजा लेफ्ट ही लेफ्ट, तो वो करेंगे। लेकिन इसका मीनिंग अगर आप एग्जिट करते हैं ना, ही एग्जिटेड, यानी वो कहीं पर था और वहीं से निकल गया है। तो जब खरजा के साथ मिन आएगा तो आपने इसका मीनिंग एग्जिट करना है, लेफ्ट करना है, ठीक है? लेफ्ट करना है। अब ज़हाबा जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, इस तरह के क्वेश्चन किया करें प्लीज। और ज़हाबा मुझे जवाब देने में बहुत मजा आता है और अल्लाह ही दिमाग में डालता है जवाब भी। ज़हाबा जो है इसके तहत आपका हमेशा इला यूज होगा। इला, ये दो प्रेपोजिशन इन वर्ब के साथ आएंगे और हमेशा खरजा के साथ मिन आएगा, ज़हाबा के साथ इला आएगा। तो जब ज़हाबा के साथ इला आ रहा है तो आप उसका मीनिंग वेंट करेंगी, और खरजा मिन आ रहा है तो उसका मीनिंग आप लेफ्ट करेंगे। क्लियर है बात? क्या अभी भी कोई डाउट है? खरजा में आप जुमले में देखेंगे, जब भी खरजा आएगा तो मिन आएगा तो आप उसका मीनिंग लेफ्ट करेंगी, और ज़हाबा के साथ जब इला है से हुआ इला का मतलब फिर यहाँ पर क्या होगा? ज़हाबा इला। हाँ, ज़हाबा इला, जैसे ज़हाबा के साथ आ गया पे ज़हाबा, वो गया, कहाँ गया? इलल मुदरिसी, इलल मुदीरी। अब देखें जरा मीनिंग देखें इसका। ज़हाबा इलल मुदीरी, वो कहाँ गया है? यानी वो मुदीर के पास गया है। he went to the principal, तो इसका मीनिंग टू दा हो गया ना? जी बाजी, यही एक बात मैं कहना चाह रही थी, जैसे खरजा मिन का मतलब है वो वहां गया हुआ है और अब वो वहां से लीव कर रहा है, मतलब ऑलवेज एग्जिट के लिए, ठीक है ना? ज़हाबा इलल का मतलब जिन जगहों पे हम जा रहे हैं, इला हॉस्पिटल हो गया, इला मतबा हो गया, इला मदरसा हो गया, जाने के लिए, और एग्जिट के लिए, ऐसे निशानी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, आप देखेंगे खरजा के साथ हमेशा मिन यूज होगा। ये बात नोट कर लीजिए, मैंने बताई है। ज़हाबा के साथ इला यूज हो गया, यानी वो मुदीर की तरफ गया है, मुदीर के पास गया, यानी उसके ऑफिस में गया है, ठीक है ना? यहाँ पर ये मतलब होगा। और खरजा मिनल फसली, वो क्लास से निकला, यानी ऑलरेडी वो देर था क्लास में और अब वो क्लास से निकला है, एग्जिट किया उसने, ठीक है? तो सिस्टर फौजिया आपको समझ आ गई? खरजा मिन और ज़हाबा इला, ये यही मीनिंग को वाज़ेह करते हैं, मिन और इला। तो यानी क्लास में पहले से वो क्लास में मौजूद है और अब वो क्लास से निकल गया है, he left the class, ठीक है? और यहाँ पर क्या होगा कि वो मुदीर के पास गया, यानी उसके ऑफिस में गया है, उसके ऑफिस में गया है। ज़हाबा इलल मुदीरी, यानी मुदीर अपने ऑफिस में है ना, तो वहां पर वो गया है, टू द मुदीर, प्रिंसिपल। तो इंशाल्लाह जब आप ये सबक पढ़ेंगे ना तब आपको चीजें और वाज़ेह होंगी। तो ये तो वर्ब के साथ इस्तेमाल था ना, लेकिन हर्फ जर के साथ भी इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ हर्फ जर और नाउन, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़िए, यास्मीन आप पढ़ना शुरू करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, मैं पढ़ती हूँ। अल बैतु घर, मिनल बैती घर से, अल मस्जिदु मस्जिद, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ।
टू द मॉस्क, ठीक है। बात दफा इंग्लिश में ना मीनिंग ज्यादा क्लियर हो जाता है, अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी करने की कोशिश करें, वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। टू द मॉस्क, टू द मॉस्क, टू द मस्जिद, एंड फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द हाउस यानी हाँ। तो अब ये है कि ये घर में मौजूद है और अभी घर से क्या है, मिनल बैती, घर से बाहर जा रहा है। खरजा मिनल बैती, खरजा के साथ क्या है, हमेशा मिन आएगा, और ज़हाबा के साथ हमेशा इला आएगा। ज़हाबा हामिदुन या खालिदुन, ज़हाबा खालिदुन इलल मस्जिद, खालिद कहाँ गया, मस्जिद की तरफ गया है। इला का मतलब तरफ भी होता है, टू भी होता है, टू दा भी होता है, टूवर्ड्स भी होता है, कुछ भी कर लें, सही है ना जी जी। आगे और आगे जी। ओके, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं यहाँ पे। अल मुदर्रिसु, ओके, मिन आइना अंता, आप कहाँ से हैं, मोहम्मदुन या अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। अल मुदर्रिसु, ओके। व मिन आइना अम्मारुन, और अम्मार आप कहाँ से हैं, मोहम्मदुन हुआ मिनस सैनी, वो चाइना से है, वो चाइना से, ठीक है। आगे वमिन आइना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है, हुआ मिनल हिंद, वो हिंद से है, ठीक है। आइना अब्बासुन, अब्बास कहाँ से है, सॉरी अब्बास कहाँ है, सॉरी अब आइना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है। यही तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपने क्या करना है ना, जल्दी जल्दी पढ़ने के, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिन आइना और आइना में फर्क है। जी। आइना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है, खरजा, ही लेफ्ट, वो चला गया। आइना ज़हाबा, कहाँ गया, ओके कहाँ गया, आइना ज़हाबा, कहाँ गया, ज़हाबा इलल मुदीर, मुदीर के पास गया। अब देखिए आप यह एक चीज मिस कर रही है ना, ज़हाबा के अंदर जो होता है ना, ही भी होता है। वो कहाँ गया है, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया है, किसके बारे में बात हो रही है, वो कौन है, अब्बास। अब्बास के बारे में बात हो रही है। तो वो कहाँ गया है, तो वो कहाँ गया है, ज़हाबा इलल मुदीरी, वो कहाँ गया है, वो मुदीर के पास गया है, यानी मुदीर के पास। देखिए ज़हाबा के साथ आपका क्या आ रहा है, इला आ रहा है ना, तो ज़हाबा के साथ हमेशा आगे इला आएगा, टू द। चलें आगे। व आइना ज़हाबा अलीयुन, और अली कहाँ गया है, ज़हाबा इलल मिरहादी, वो टॉयलेट गया, टॉयलेट की तरफ गया है, या तो फिर नहीं बाथरूम की तरफ गया, नहीं टॉयलेट कह रहे हैं, टॉयलेट कह रहे, कोई बात नहीं, टॉयलेट ही है ना, ये टॉयलेट है। बैतुल खला, अच्छा बैतुल खला, हाँ वो बैतुल खला भी कई लोगों ने, मैंने देखा था तर्जुमे में लिखा हुआ था, तो कोई हर्ज नहीं है होमवर्क में। तो ज़हाबा इलल मिरहादी, वो बैतुल खला गया है, आप कह सकते हैं, लेकिन वो को मिस नहीं करना। ये जो ज़हाबा और खरज है ना, गया है, इसके अंदर हिया भी ही ज़मीर होती है, इसके अंदर हुआ होती है, यानी इसके अंदर। अच्छा उस्ताद, यहाँ पे बैतुल खला गया या बैतुल खला गया है, आखिर में है लगाना है या नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, लगाना है, उसके बगैर तो देखिए तर्जुमा ही कंप्लीट नहीं होगा। जी। लेकिन जो जुमला फेलिया होता है ना, अब ये जुमला जो है फेल से शुरू हो रहा है, जो जुमला फेल से शुरू होता है उसको जुमला फेलिया कहते हैं, ठीक है ना। अब जुमला फेलिया में है लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जुमला इस्मिया में है लगाना मस्ट है। अब ये देखिए, ये भी जुमला, वो मुदीर के पास गया है लगाएंगे ना, तो है के बाद बगैर तो आपका जुमला नहीं है। जैसे इंग्लिश में आप करें तो ही वेंट टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के पास गया है। अब हालांकि इज नहीं आ रहा है इसमें, इस जो होता है वो होगा ना बाजी, ये पास्ट टेंस है तो था की मीनिंग में देगा, वो गया, यहाँ कंप्लीट होगा। हाँ, ही वेंट टू द मुदीर, वो हाँ, लेकिन यहाँ पर ज़हाबा इलल मुदीरी, माइक बंद करे, नहीं वो तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, मैं इनका यहाँ पे वो एक चौकीदार हूँ जो मैं इनके म्यूट करते ही रहूं, फिर मुझे बोलना पड़ता है, मैं क्या करूं। अब देखिए मैंने म्यूट कर दिए तो अब सब म्यूट हो गए, ठीक है, जो पढ़ेगा वो अनम्यूट करेगा, तो यही है, लॉक कर दिया जाए इनको, फिर शरारती बच्चों को लॉक ही करना पड़ता है।
اب کیا کریں ہم یہاں پہ ذہب الی المدیری ہی وینٹ, جب دیکھیں جب انگلش میں کریں گے نا تو وہ زیادہ واضح ہوتا ہے, آپ کا پاسٹ ٹینس آ ہی رہا ہے نا, ہی وینٹ ٹو دا پرنسپل, ہے نا. تو انگلش اردو میں کریں گے تو گیا ہے کا مطلب پاسٹ ٹینس ہی ہوا نا, جا رہا ہے اگر کہیں گے نا تو وہ پریزنٹ ٹینس ہوگا. جی جی سمجھ آئی. سمجھ آئی, یعنی جب آپ گیا کہتے ہیں تو وہ پاسٹ ٹینس ہی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہے لگا دیں گے تو کوئی حرج نہیں, وہ گیا بتا رہا ہے کہ وہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ جا رہا ہے, پریزنٹ ٹینس تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جاتا ہے یا جا رہا ہے, یہ تو نہیں کہہ رہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گیا ہے, بس تو پاسٹ ٹینس ہو گیا. چلیے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. نیکسٹ ابھی کون پڑھیں گے سسٹر, پورا کریں اس کو, میرے ہاتھ والا ہو گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. میرا ہاں چلیں یاسمین جزاک اللہ. ہمارا اشفاق نیکسٹ. پلیز کوئی بھی آج پڑھنے سے نہ رہے, سب پڑھیں. ٹھیک ہے, مائک پہ بولنا بھی جو ہے نا اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میں پڑھوں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ ہمارے ہیں. اوکے. المدرس کہاں سے؟ یہاں سے کریں, یہاں سے یلو لائن سے کریں. البیت من البیت, المسجد. یہ ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے. اچھا کون پڑھ رہے, نام بتائیں. شمشاد پڑھ رہی, چلے کوئی بات نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. المدرس لیسن پڑھنا ہے نا؟ جی جی پڑھی. اوکے. المدرس من این انت, where are you from? محمد انا من الیابانی, I am from Japan. المدرس ومن این عمار, where is Ammar? Where is from Ammar? هو من الصين, he is from China. وہ نہیں دکھا رہا ہے اسکرین پہ. آ جائے گا تھوڑی دیر میں, آپ کا نیٹ ویک ہے انشاءاللہ. جی آئے گا, آپ کا نیٹ ویک ہے. ومن این حامد, and where is Hamid from? هو من الہندی, he is from India. این عباس, where is from این عباس, where is Abbas? خرج, he left. مدرس این ذهب, where he went. محمد ذهب إلى المدير, he went to the principal. المدرس وأين ذهب علي, and where is Ali went. محمد ذهب إلى المرحاض, he went to toilet. to the toilet. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. اچھا حسن ہے, ہمارا تو نہیں آ رہی مائک پہ, پتہ نہیں. جی حاضر لبیک. ہاں آپ کون ہیں؟ ہمارا حسن. اوکے ٹھیک ہے, حسن آ جائے, جلدی سے پڑھ لیں, اوپر سے پڑھیے اور صحیح کر کے بتائیے. جی بہتر. البیت گھر, من البیتی گھر سے, المسجد مسجد, الی المسجد مسجد کی طرح. المدرس من این انت, آپ کہاں سے ہیں. محمد انا من الیابان, میں جاپان سے ہوں. المدرس ومن این عمار, اور عمار کہاں سے ہیں. محمد ہوا من الصین, وہ چین سے ہیں. المدرس ومن این حامد, اور حامد کہاں سے ہیں. محمد ہوا من الہند, وہ ہند سے ہیں. المدرس این عباس, عباس کہاں ہیں. محمد خرج, وہ نکل گئے. المدرس این ذهب, وہ کہاں گئے. محمد ذهب الی المدیری, وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں. المدرس وأین ذهب علی, اور علی کہاں گئے ہیں. محمد ذهب الی المرحاض, وہ ٹوائلٹ کی طرف گئے ہیں. مرحاضی, مرحاضی, ٹھیک ہے, مرحاضی, وہ ٹوائلٹ کی طرف. اس کو زواد نہیں پڑھنا, پھر آپ زوادے پڑھتی رہیں گی. اچھا نیکسٹ کون ہے؟ جزاک اللہ حسن. فوزیہ بھی ہو گئی. مونا فرحان. ٹیچر مجھے ایک سوال آپ سے کرنا تھا, میں اس سوال کو تھوڑا الجھ جاتی ہوں. آپ نے پڑھایا ہمیں اس اسماء اشارہ, حاذا, یہ حاذا
اس میں اشارہ قریب. اچھا ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں ذالک، یعنی اس میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یہ کتاب. تو جب ذالکہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اس کا مطلب وہ ہے، تو پھر وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، تو وہ وہاں پہ ذالکہ کیا تاکید کے لیے آیا ہے؟ نہیں، میں نے اس سوال کا جواب پہلے بھی دیا ہے. کسی سسٹر کو یاد ہو تو بتا دیں. میں نے ایک سسٹر کو پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا، ان کا بھی یہی ڈاؤٹ تھا کہ وہاں پہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے. اصل میں وہاں پہ یہ اور بریکٹ میں وہ بھی لکھا ہوا ہے. اگر آپ وہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں آپ لوگ، یہ وہ کتاب ہے. تو یہاں 2 ٹرانسلیشن لکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، وہ صرف وہ کیوں نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ دور کا اشارہ ہے تو وہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو عرب عزت دینا چاہتے ہیں اس کو لیے وہ قریب بھی ہو تو دور کا اشارہ یوز کرتے ہیں. قرآن کریم جو ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب ہے نا، تو یہ ہونا چاہیے نا ترجمہ. لیکن وہاں پہ وہ کیوں کہا گیا، کیونکہ وہ کتاب کو رسپیکٹ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں. تو جس چیز کو بھی رسپیکٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کا دور کا اشارہ، قریب ہوتی ہے وہ چیز لیکن دور کا اشارہ یوز کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ وجہ، تو اس کا جواب میں پہلے دے چکی تھی اور امید ہے آپ کو بھی سمجھ آ چاہتی ہوں. نہیں کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہے دوبارہ ریپیٹ ہو گیا جنہوں نے نہیں سنا آپ کی طرح. نو پرابلم. چلیے نیکسٹ سسٹر آ جائیں. جی بھائی کی سسٹر. اچھا السلام علیکم. مونا السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اجازت سے پڑھوں؟ پڑھیے، یہاں سے پڑھیے. البیت میننگ کریں البیت گھر، البیت گھر، من البیتی گھر سے، المسجد مسجد، الی المسجدی مسجد کی طرف. مسجد الا کا مطلب طرف، ٹھیک ہے نا، طرف، مسجد کی طرف. جی. المدرس ٹیچر. دیکھیں مدرہ نہیں ہے، یہ تشدید کے نیچے جب ہوگا تو زیر پڑی جائے گی. مدرسو، المدرسو. من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ محمد، انا من الیابانی، میں جاپان. من الیابانی، انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں. المدرس استاد. ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے؟ محمد ہوا من السین. لیکن پھر آپ نے زبر پڑھی ہے. من السینی، سوری مس، سوری. ہوا من السینی، ہوا من السینی، وہ چین سے ہے. المدرس استاد. ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے؟ محمد ہوا من الہندی، وہ بھارت یا انڈیا سے ہے. المدرس استاد. این عباس، عباس کہاں سے ہے؟ محمد خرجا، نکلا، گیا. عباس کہاں سے ہے؟ این عباس کا میننگ دوبارہ. نو عباس کہاں سے ہے؟ نو. این عباس، عباس کہاں ہے؟ سوری میم. این مطلب کہاں، عباس مانا عباس. این عباس، عباس کہاں ہے؟ محمد خرجا، محمد وہ گیا، وہ نکل گیا. المدرس استاد. این ذهب، وہ کہاں گیا؟ محمد ذهب الی المدیری، محمد وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا. المدرس استاد. وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا؟ محمد ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاضِ، وہ ٹوائلٹ، وہ بیت الخلا گیا. محمد بیت الخلا گیا. اب دیکھو اگر وہ بیت الخلا گیا یا وہ اس طرح سے کریں گے تو برا لگ رہا ہے نا. جب تک آپ ہے نہیں لگائیں گے آگے جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو، لگانا ضروری ہے. اچھا اب آپ کا یہاں پہ میں آپ سے ایک لفظ پڑھاتی ہوں، اس کو پڑھیے. مدرس تو آپ نے یہاں پڑھا ہے نا، مدرسہ. جی جی. اس کو میں پڑھاتی ہوں آپ سے.
را اچھا اس کو پڑھیے. المدرسۃ. اچھا ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے ہاں رتو را مدرس. اچھا کوئی اور پڑھے گا اس کو؟ کون صحیح کرتا؟ المدرسۃ. ہاں اچھا کبھی المدرسۃ. ہاں دیکھیں ابھی آپ نے جنہوں نے پڑھا ہے نا انہوں نے سین پہ تشدید پڑھی ہے. جنہوں نے بیچ میں یاسمین نے شاید پڑھا, کس نے پڑھا, اس نے سین پہ تشدید پڑھی ہے, جبکہ یہاں پہ صرف ایک. دوبارہ سے پڑھیے. المدرسۃ. 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 مدرسۃ. رسا نہیں کرنا اس کو. ہاں کچھ لوگ پتہ ہے کیسے پڑھتے ہیں المدرسۃ. میں نے نہیں پڑھا تھا اس میں, آپ جو کہہ رہی ہو میں نے نہیں کچھ لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہے ایسے, ٹھیک ہے. تو مدرسۃ, ٹھیک ہے نا. تو مدرسہ کو آپ نے یہاں پہ تشدید نہیں پڑھنی, اس کو آپ نے خیال سے مدرسۃ پڑھنا ہے. را سا مدرسۃ. تو یہ اس میں ضروری ہے, اور اب جب بھی پڑھیں گے تو کیئرفل رہیں گے. ٹھیک, جنہوں نے پڑھا تھا ہم نے صحیح پڑھا تھا, لیکن یہ کچھ لوگوں نے غلط پڑھا اس لیے میں نے اس کو تصحیح کرائی ہے اس کی. ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پہ نیکسٹ سسٹر کو بلاتی ہوں میں. جزاک اللہ میم. اچھا مونا آئی تھی, مونا نے پڑھا؟ جی میم میں نے ابھی پڑھا ہے. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. زاہدہ بیگم. میم مجھے ایک کوشچن کرنا تھا آپ سے. کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی, جب ہم یہ عربی پڑھ لیں گے تو ہم قرآن شریف کا ترجمہ بہت آسانی سے کر سکیں گے نا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, فی کا لفظ اگر آپ دیکھیں جا کے کہیں بھی گوگل میں ڈالیں کہ قرآن میں فی کا لفظ کتنی بار آیا ہے, تو کوئی میرے خیال میں ہزاروں میں آیا ہے فی کا معنی. من کا لفظ, فی کا لفظ, الا کا لفظ, الا کا لفظ. تو آپ نے قرآن کے کتنے ورڈ یاد کر لیے, سوچیں کتنے, یعنی ہزاروں میں. یعنی اگر آپ نے صرف فی کا میننگ یاد کیا تو آپ نے ہزاروں ورڈز کے میننگ یوز کر لیے قرآن میں سے, یاد کر لیے. اسی طرح اینا ہے, اس طرح من ہے, اسی طرح خرجہ ہے. خرجہ کی اتنی فارمز آتی ہیں قرآن مجید میں, ذہبہ کی اتنی فارمز آتی ہیں کہ آپ کو کتنے, ایک ذہبہ کا میننگ آپ نے یاد کر لیا نا, وینٹ, ہی وینٹ, تو آپ کو پورے قرآن مجید میں سے کتنے لفظ یاد ہو گئے. تو سوچیں کہ قرآن کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بے شک کچھ لفظ نہیں آتے قرآن میں, الہند نہیں آتا, مدیر نہیں آتا, لیکن اس کے ساتھ جو یوز ہو رہے ہیں وہ تو سب آ رہے ہیں نا. اینا آ رہا ہے, خرجہ آ رہا ہے, ذہبہ آ رہا ہے, تو قرآن کے ورڈ آ رہے ہیں. تو ہم آپ ابھی دیکھیں, ابھی آپ جب قرآن مجید پہ جائیں گے نا, آپ غور نہیں کرتے, آپ صرف ریڈنگ کرتے ہیں. او جلدی نہیں میم میں غور کرتی ہوں. میم کل جیسے میں قرآن شریف پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک آیت آئی, تو بالکل وہی آیت تھی جو ہم پڑھتے ہیں اس بک میں, تو بہت آسانی سے میں نے اس آیت کا ترجمہ کر لیا. مجھے اندر سے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے رونا آ گیا کہ ابھی ہماری ایک کی بک چل رہی ہے اور ماشاءاللہ ہم ترجمہ خود سے کرنے لگے ہیں. بالکل آپ غور کریں گے کہ اچھا یہاں پہ الہ ہے, اور الہ تو ہم نے وہ, بلکہ وہ جو لفظ ہے نا قرآن کے, وہ آپ سے باتیں کریں گے, خود بول کے بتائیں گے, دیکھو تم ہمیں جانتی ہو, تم نے یہ پڑھا ہے. میم صرف یقین کریں, یہ جو 1-1.5 گھنٹہ ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں نا, صرف ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو جو اندھا پڑھ رہے ہیں نا, وہ ہم قرآن کو بینائی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں, تو میں کیوں روشنی آئے ہماری آنکھوں میں. میں کیوں محنت کر رہی ہوں, میں بھی تو اس لیے آپ کو بچوں کو لائی ہوں. میں نے کہا جو مشکلیں ہم نے اٹھائی ہیں نا بڑوں نے, یا ابھی پڑھنا شروع کیا ہے, وہ بچوں سے سٹارٹ ہو. تو بچے مائیں جو ہے نا بچوں کے ساتھ محنت کریں, خود پڑھ کے بچوں کو پڑھائیں. جتنا اچھا آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں نا, میں آپ کو یقین کروں, میرے نواسے جو تھے, وہ 2 نواسے میرے عربی اسکول میں جاتے تھے. جب یہ کووڈ شروع ہوا نا تو وہ گھر پہ بیٹھ گئے, تو ان کی مام نے کہا ان کا اسکول بند ہو گیا, تو آپ ان کو تھوڑا ٹائم دیا کریں. ان کو پتا ہے مام بزی ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹائم دیا کریں. میں نے جب ان کو چیک کیا تو ان کی ٹیچر نے ان کو 4-5 سالوں میں کچھ بھی نہیں پڑھایا ہوا تھا. آپ یقین کریں باہر کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ کی منی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن جتنی ماں کوشش کر سکتی ہے, آپ یقین کریں وہ بک 8 پہ ہیں ابھی, اس میں قرآن کی آیات, کل مسلسل قرآن کی آیت آ رہی تھی اور وہ خود ہی ترجمہ کرتے جا رہے تھے, اور ڈیپتھ کے ساتھ ٹرانسلیشن کرتے جا رہے تھے. بک 8 پر ہے, مدینہ بک نمبر 8 پر ابھی وہ پڑھ رہے ہیں میرے پاس, اور ان کی عمریں میں کوئی ایسی نہیں ہے, وہ چھوٹے ہیں, لیکن اتنا ماشاءاللہ وہ پڑھ گئے. تو جس طرح ماں یا نانی محنت کر سکتی ہے, اس طرح کوئی نہیں کرے گا. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, 2 رشتے ہوتے ہیں, دادی نانی یا یہ. صرف میں اس لیے ہی یہ
टाइम निकाल के अरबी सीखना चाहती हूँ कुरान शरीफ, कि जब मेरे खुद के जो बच्चे हैं आगे जाके जो प्रॉब्लम्स हमको होती है, हम अंधे कुरान पढ़ते हैं, अंधी चीजें पढ़ते हैं, कोई भी हम दुआ पढ़ते हैं तो हमें तर्जुमा नहीं पता, बस हमने रट्टा लगा लिया, मदरसा गए रट्टा लगा लिया। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को वो वर्ड बाय वर्ड याद हो, सिर्फ इसलिए मैं इस उम्र में कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल, इसलिए तो वो अमल में भी नहीं आता ना, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता तो अमल में भी नहीं आता। जब आप समझते हैं कि इसकी कितनी डेप्थ है, कितनी सख्ती है इसके अंदर। जब मैंने ये आपसे 2 क्लास ली ना तो यकीन करें मेरा हौसला इतना बड़ा, वरना सिर्फ मैंने फॉर्म इसलिए फिल किया था कि एक फॉर्मेलिटी का कि मैं देखूंगी टीचर कैसे पढ़ा रही है, मैं पढ़ सकूंगी, इस उम्र में मैं पढ़ सकूंगी नहीं पढ़ सकूंगी। माशाल्लाह मेरी उम्र 35 है, मेरे 4 बच्चे हैं, इतना काम सब कुछ होता है, तो मैं सिर्फ आपकी आवाज सुन के मुझे लगा कि नहीं, ये उस्ताद ऐसी है जो जिस तरह मैं चाहती हूँ ना कोई मुझे पढ़ाए, ये पढ़ा रही है तो मुझे क्लास लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इखलास बहुत जरूरी है, ये इखलास बहुत जरूरी है। आप में भी इखलास और मुझ में भी इखलास, दोनों में बहुत जरूरी है। जी मैम, जो मतलब मैं सोचती हूँ ना आपसे पूछूं, वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सिस्टर्स पूछती है तो मैंने कहा सब टाइम जाया होगा, वो पूछ चुकी है, मेरा जहन क्लियर हो चुका, मुझे जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये जो आपने बात की है ना सिस्टर, ये बहुत से लोगों को मोटिवेट करेगी। बहुत से लोग जिस वक्त डिसहार्ट होके बैठे हुए ना, वो कहते हैं कि आए मुश्किल है, टाइम नहीं मिल रहा, अल्लाह ताला आपके वक्त में ऐसे बरकत डालते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम अल-हुदा को ज्वाइन किया था, मैंने फॉर्म फिल किया था, 3 महीने तक मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था। मैं डर रही थी, पता नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, ये तफसीर का कोर्स क्या होता है मुझे नहीं पता, और मैं कर सकूंगी कि पता नहीं कितना हार्ड होता है। 3 महीने के बाद जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया तो मैंने कहा मेरे तो फुल मार्क्स आ गए टेस्ट में, तो मुझे तो करना चाहिए। फिर 3 महीने के बाद मेरा रोल नंबर लिया। आप यकीन करें तब तक मैं एज अ लिसनर रही, मुझे डर था कि मैं कर सकूंगी कि नहीं, यही हाल था मेरा। मुझे भी यही डर था, लेकिन जिस तरह आप माशाल्लाह पढ़ा रही है ना, मेरा डर खुल के मतलब मुझे खुद हौसला आ रहा है कि नहीं, जरूरी नहीं आप बच्चे उम्र में हो, आप स्टूडेंट की उम्र में आप कभी सीख सकते हो, नहीं आप जिस उम्र में चाहो आप सीख सकते हो। मेरा हौसला बहुत बड़ा है। कोई नहीं है, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। जब आप पढ़ना चाहें, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं। मैं जितनी दुआ आपके लिए कर सकती हूँ ना, मैं करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर मुन्ना। आप नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, ठीक है। सब मैं पढ़ूं। जाहिदा का नाम लिया था मैंने, जाहिदा को कभी नहीं सुना। जाहिदा माइक पे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए आप आ जाइए और कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। लास्ट आपसे पढ़वा लेते हैं, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल बैतु, ये क्या खास घर है? हाँ जी, अल बैतु आप सिर्फ घर कह लेना, घर, सिर्फ घर कह मिनल बैती, घर से, घर से, अल मस्जिद, मस्जिद, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। गुड। अल मस्जिदु, मस्जिद, ठीक है, सिर्फ मस्जिद बोलेंगे, खास मस्जिद नहीं बोलेंगे, मस्जिद। जब आप मस्जिद बोल देंगी तो वो खास ही हो जाएगी, लेकिन जब आप एक मस्जिद बोलते हैं तो वो खास नहीं होती। एक मस्जिद ये खास नहीं है। एक मस्जिद जिसके साथ एक आ जाता है, वो एक का तर्जुमा फिर पता है ना, मस्जिद उन से आता है ना, तो मस्जिद उन जो होती है वो खास मस्जिद नहीं होती। वो कोई भी मस्जिद, कोई भी मस्जिद, एक मस्जिद, कुछ भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई भी मॉस्क, एक मॉस्क। लेकिन जब अलिफ लाम लग जाता है तो उसका तर्जुमा सिर्फ मस्जिद हो जाएगा, सिर्फ घर हो जाएगा। टू द मस्जिद, मस्जिद की तरफ। वेरी गुड, आगे। अल मुदर्रिसु, वेरी गुड। ऐना अंता, तुम कहाँ से हो? गुड। मुहम्मदुन, क्या मोहम्मद? मुहम्मदुन तन्वीन है ना। मुहम्मदुन अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। मिन का मतलब से, जापान, ठीक है। याबानी का मतलब जापान, और अना मैं जापान से हूँ। अल मुदर्रिसु वमिन ऐना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से है? गुड। मुहम्मदुन हुआ मिनस सीनी, वो चाइना से है। रिलैक्स होके पढ़े, रिलैक्स होके पढ़े, ठीक है। आगे। अल मुदर्रिसु,
Al-mudarrisu Al-mudarrisu का मीनिंग क्या होता है सिस्टर? टीचर. टीचर. Al-mudarrisu मेल टीचर होता है, ठीक है? अच्छा आगे. क्या क्या बोले आप? मेल टीचर जो होता है ना मुदर्रिस होता है. अच्छा. फीमेल में गोल ता लग जाती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है? वो मिन आयना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है? गुड. मुहम्मदुन हुआ मिनल हिंद, वो हिंद से है, वो हिंद से है, इंडिया से है. अल मुदर्रिसु आयना अब्बासुन, अब्बास कहाँ से है? मुहम्मदुन खरजा, वो निकला. अल मुदर्रिसु आयना ज़हबा, वो कहाँ गया है? आप तो इतना अच्छा पढ़ रही है माशाल्लाह. फर्स्ट टाइम माइक लिया आपने शायद, है ना? जी. माइक पे घबराहट होती है, मैं भी माइक पे आती हूँ ना तो मुझे भी हाथ पैर पड़े होते हैं. क्लास ले रही हूँ तो अलग बात होती है, लेकिन कहीं पे मैंने अपनी टीचर के सामने करना हो तो मेरा भी यही हाल होता है. तो वो ये तो नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. ज़हबा ज़हबा इलल मुदीरी, वो प्रिंसिपल की तरफ गया. वो गया, प्रिंसिपल की तरफ गया. वो आयना ज़हबा अलीयुन, अली ज़हबा इलल मिरहासी, वो वॉशरूम की तरफ गया. हाँ, वो वॉशरूम की तरफ गया है. और वअैना ज़हब अलीयुन, और अली कहाँ गया है? अलीयुन और अली कहाँ? ऐना का मतलब कहाँ गया है? ज़हबा इलल मिरहादी. माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा. आप आया करें माइक पे ना, फिर आपको एकदम से खुल जाएगा सब, ठीक है? आप फर्स्ट टाइम आई हैं, थोड़ी घबराहट थी आपके. जी बोलिए. इंशाल्लाह. मुझे दोबारा से बता देंगी समरी, मैंने अभी ज्वाइन किया है. क्या बताऊं समरी? यस मैम, लाइक टॉपिक. हाँ, टॉपिक जो है वो हम हुरूफ जारा पढ़ रहे हैं, ठीक है? और हमने लास्ट टाइम फी और अला पढ़ा था. फी का मतलब इन होता है, अला का मतलब ऊपर होता है, ठीक है? ये दो वर्ड हमने पढ़े थे हुरूफ जारा में से. और आज जो है वो हम मिन पढ़ रहे हैं और इला पढ़ रहे हैं. मिन और इला, ये देखें ऊपर यहाँ पे, मिन और इला. हाँ, तो आप जल्दी ज्वाइन किया करें. अगर बच्चों का कोई मसला है, स्कूल से लेना होता है या कुछ और मसला है तो ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें कि वक्त पे रेडी रहा करें क्लास के लिए. मैं 6 बजे स्टार्ट कर देती हूँ, सही, ठीक है ना? क्योंकि मुझे भी फिर आगे अपनी और क्लासेस करनी होती. आप पढ़ेंगी यहाँ से? क्या नाम है आपका? मैम तहरीम फातिमा. तहरीम आप पढ़ेंगी? जी मैम. अलबैतु मिनल बैत, मिनल बैती. मिन का मतलब होता है घर में. नहीं, मिन अभी आप आई है ना, तो मिन और मिन का मतलब से होता है. आपने रिकॉर्डिंग जरूर सुननी है, ठीक है? मैंने काफी कुछ बताया आज, ठीक है ना? तो मिन का मतलब होता है, मिन का ये असल में मिन होता है, ठीक है ना? मिन होता है, ये इस तरह सुकून के साथ होता है. इसका मतलब होता है से, और इंग्लिश में फ्रॉम होता है, ठीक है? मिन से. और इला का मतलब होता है, ये जो इला है इसका मतलब होता है तरफ उर्दू में. और इंग्लिश में क्या होता है? टू द. नहीं, वो अला होता है. पर जो होता है ना वो अला होता है. फर्क करें, अला जो है वो पर है, ठीक है? बाकी लोग म्यूट करें. अच्छा, अनम्यूट करें आप अपना जो पढ़ रही हैं. तो जी मैम. हाँ, ये देखें, इसका मीनिंग अलबैतु का क्या मीनिंग होगा? जल्दी जल्दी करें. अलबैतु, अलबैतु ये मतलब मार्फा होगा, और ये घर. ये घर, ये भी लगाएंगे साथ. मैम अल मतलब किसी भी चीज को खास करने के लिए अल यूज किया जाता है. हाँ, लेकिन तर्जुमे में तो खास नहीं लिखेंगे ना. क्या लिखेंगे तर्जुमे में? अलबैतु वो घर. नो, इंग्लिश में कर सकती हैं अलबैतु का तर्जुमा. द हाउस.
द हाउस, ठीक है ना। इंग्लिश में द हाउस होगा, उर्दू में सिर्फ घर होगा। जी मैम, घर का मतलब दा होता है, ठीक है। अब उर्दू में तो दा नहीं लगा सकते ना हम, दा घर ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो हम इसको सिर्फ घर बोलते हैं। उर्दू में घर बोलते हैं, इंग्लिश में जब लिखेंगे तो अल का मतलब दा होता है, दा हाउस, ठीक है। और बैतुन का क्या मतलब होता है? बैतुन का क्या मतलब होता है? बैतुन का मतलब घर, सिंपल जो हाउस। तो इसका मतलब भी घर, इसका मतलब भी घर। मैम जब अल लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये खास, लेकिन तर्जुमे में फर्क आएगा ना। बैतुन का तर्जुमा, हाँ जी बताइए। बैतुन एक घर, और अल बैतु सिर्फ घर। मिनल बैती घर से। अच्छा सिस्टर, आपने बैत एक का तर्जुमा कहाँ से किया? कोई का या एक का तर्जुमा कहाँ से आता है? जो तनवीन लगी हुई है ना आखिरी वर्ड पर, एराब लगा हुआ है, उससे हम एक, उससे मुराद एक होती है। बैतुन एक घर, एक घर। तनवीन का तर्जुमा हमेशा अरबी में एक करते हैं। एक करते हैं, कोई भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। कोई घर यानी कोई भी घर, नकीरा है ये, ठीक है ना, इनडेफिनेट नाउन है। और जब हमने ये लगा दिया अलबैतु तो वो खास हो गया, डेफिनेट नाउन हो गया। ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, अलिफ लाम जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। इससे मीनिंग द हाउस हो जाता है या फिर सिर्फ घर हो जाता है। आगे करें, मिनल बैती, और मिन का मतलब मैंने बताया से, इंग्लिश में फ्रॉम होगा, ठीक है, फ्रॉम। बताइए मिनल बैती। मैम घर से। घर से आगे अल मस्जिदु, ये नहीं, मस्जिद, सिर्फ मस्जिद कहना है, सिर्फ मस्जिद, हाँ ठीक है। मस्जिद की तरफ। इलल मस्जिद दी, ये दी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कसरा, ये दी क्यों आ रहा है यहाँ पे? कसरा क्यों आया? यहाँ पर तो नहीं आया, यहाँ पर तो पेश आ रही है, यहाँ पे कसरा मैम क्योंकि अल लगा है इसलिए। अल की वजह से तो एक कसरा आया है ना, दो नहीं आए। अगर अल ना होता तो दो कसरे आते हैं, अल की वजह से तो एक कसरा आया है। ये कसरा किस वजह से आया? मैम इला की वजह से, इलल मस्जिद। हाँ, हरफे जर है ना, तो जर का मतलब होता है जेर। तो ये हुरूफे जारा जो है, हरफे जर जो है, ये आपका दम्मा गिरा देता है। अल मस्जिदू का दम्मा उसने गिरा दिया और उसको कसरा दे दिया। आप ये नहीं कह सकते इलल मस्जिदू, इलल मस्जिदू नहीं कह सकते, बल्कि आप अलल मस्जिदी पढ़ेंगी। अगर आप इलल मस्जिदू कहती हैं, मिनल बैतू कहती हैं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो अब आपने नहीं करना, अब आप सही करके पढ़ें। ओके मैम। अल मुदर्रिसु उस्ताद, मिन ऐना अंता, ये कहाँ से है? मिन ऐना अंता, अंता का मीनिंग क्या होता है? अंता मैम ये लड़की के लिए यूज किया जाता है। ये लड़की कहाँ से है? अंता का मीनिंग आप या तुम। तुम कहाँ से हो? टीचर पूछ रहा है मिन ऐना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम। मिन का मतलब से, ऐना कहाँ से, तुम कहाँ से हो, ठीक है। तुम कहाँ से हो? मोमन क्या जवाब दे रहे हैं? मुझे लगता है आप पिछली क्लासेस सही करके नहीं ले रही हैं। आप अपना होमवर्क ना सही करते हैं। मैम वो क्लास ले रही थी, लेकिन ये जो आपने वो बताए थे ना, ये अन और हाजी ही, मैम इसमें मेरे से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ी रीडिंग पे तवज्जो दें और ट्रांसलेशन पे तवज्जो दें। ये दो चीजें बेसिक हैं, बाकी चीजें जो हैं वो बाद में। तो अंता का मतलब होता है, ये लड़की के लिए यूज नहीं होता, वो अंती होता है। लड़की के लिए जो यूज होता है वो अंती होता है। अंता जो होता है ये लड़के के लिए यूज होता है। तो लड़का यहाँ पे मोहम्मद है ना, तो मोहम्मद से पूछा जा रहा है मिन ऐना अंता, हु आर यू, तुम कहाँ, नहीं, वेयर आर यू फ्रॉम, यानी तुम कहाँ से हो। और मोहम्मद क्या जवाब दे रहा है? अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। अना का मतलब मैं, अंता का मतलब तू। अना मिन से और याबान जापान, जापान से हूँ। यहाँ से मेहनत स्टार्ट करेंगी ना तो भी कोई अभी कुछ नहीं हुआ बिगड़ा, अभी भी मेहनत स्टार्ट कर दें यहाँ से अगर पढ़ना है तो। चलिए आगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम। टाइम निकालें ना। मुदर्रिसु उस्ताद, वमिन ऐना अमारुन,
अमार कहाँ से है? अमार कहाँ से, और अमार कहाँ से है, वो का मतलब और होता है। ओके मैम, वाह मैम, वो साथ साथ नोट्स पे भी वो ध्यान होता था ना, लिखने का ज्यादा मेरे पे था फोकस। ठीक है, कोई बात नहीं है। मोहम्मद हुआ मिनस सईन सीन सईनी, मोहम्मद वो चीन से है। वो चीन से है, तो ये क्या है, हुआ कहाँ जा रहा है, अम्मार की तरफ जा रहा है। अम्मार के बारे में पूछा जा रहा है ना कि अम्मार कहाँ से है, तो मोहम्मद बता रहा है कि वो थर्ड पर्सन अम्मार, ठीक है ना। पहले सेकंड पर्सन से पूछा गया तुम कहाँ से हो, अब थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से है, तो हुआ मिनस सीनी, वो जापान से है, ठीक है। वो जापान से। अगर आपने मेहनत की हुई है ना, कहीं भी की हुई है, नोट्स पे की हुई है, रीडिंग पे किया है, वोकैबुलरी पे किया है, अल्लाह ताला जो है किसी की दो चीजें कभी भी जाया नहीं करते, ये पल्ले बांध लें। दो चीजें, एक मेहनत और एक नेकी। आप किसी को पढ़ाएंगी ना तो आपको ही वो लौटेगा, वो आपको ही लौटेगा, आपका पक्का हो जाएगा। तो किसी ना किसी को वो अपना लेसन पढ़ाएं, चाहे अपने बच्चे को ले लें, उसको थोड़ा बहुत बताएं, कुछ भी करें, किताब एक बार जरूर खोलें क्लास में आने से पहले। हुआ मिनस्सीनी, और दूसरा मेहनत। अभी वो मेरी मतलब अभी मेरी फैमिली नहीं है, लाइक मैं अभी न्यूली मैरिड हूँ मैम। तो फिर आपके लिए तो फिर आपको तो कोई मुश्किल नहीं। हाँ, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल, कोई बड़ी बना ले, कोई भी आपका बड़ी बन जाएगा, और जो थोड़ा वीक है उसको पढ़ाना शुरू कर दें। और अगर आप अपने वाले से ऊपर वाले से पढ़ेंगी तो वो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप पढ़ाएंगी तो वो भी बहुत अच्छा है कि आप किसी को बताएंगी तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ मिनस्सीनी, वो जापान से है। आगे अल मुदर्रिसु उस्ताद व मिन ऐना हामिदुन और हामिद कहाँ से है? मोहम्मदुन हुआ मिनल हिंद, मोहम्मद वो हिंदुस्तान से है। वो हिंदुस्तान से है, ठीक है। अल मुदर्रिसु ऐना अब्बासुन, उस्ताद अब्बास कहाँ से है? मोहम्मदुन खरज, वो गया। मैम इसका मीनिंग यही है, खरजा ये वर्ब है। वर्ब समझती हैं क्या होता है? यस मैम। हाँ, एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है ना, तो ये फेल है, वर्ब है। तो काम करना इसके अंदर काम का होना या करना पाया जाता है, और जमाना भी पाया जाता है, और इसमें काम करने वाला भी है, खरजा, इसमें हुआ भी है। तो खरजा का मतलब क्या होता है? ही लेफ्ट। इसमें ही का मीनिंग भी है और इसमें लेफ्ट भी है। लेफ्ट, हाँ, ही लेफ्ट, वो चला गया है, वो चला गया है, ही एग्जिटेड। आगे अल मुदर्रिसु ऐना ज़हबा, उस्ताद वो कहाँ गया है? मोहम्मदुन ज़हबा इला मुदीरुन, वो प्रिंसिपल ज़हबा इलल मुदीरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इला के साथ, हाँ, जब भी अलिफ लाम आता है ना तो पीछे वाले को आगे मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो इलल, ये या नहीं पढ़ा जाएगा, अभी लाम पढ़ा जाएगा। हाँ, इलल मुदीरी, अलल मुदीरी, तो ये या फिर नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह फी भी आप फिल किताबी, तो या नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ फिल किताबी, फी पढ़ा जाएगा, यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा फिल की। जो भी खाली लेटर होता है ना उसको नहीं पढ़ा जाता, फिल किताबी। तो आगे क्या हो जाएगा? इलल मुदीरी, वो कहाँ गया? हाँ, वो मुदीर की तरफ गया, प्रिंसिपल के पास गया है। अल मुदर्रिसु व ऐना ज़हबा अलीयु, और अली कहाँ गया है? मोहम्मदुन ज़हबा इलल मिरहाज, वो वॉशरूम की तरफ गया है, वो वॉशरूम गया है। ठीक है, चलें, अच्छा वो आपने बात कर ली और अपना पढ़ लिया। अच्छा, तहरीम, आपके बाद जो है मेरे पास शबाना है। शबाना आप आएंगी? अगर आपको ये पढ़ने में मुश्किल है तो इसको पढ़ लें, नहीं तो मैं अगला वाला पेज आपसे पढ़ा लेती हूँ। आप बताइए मुझे।
शबाना? अगला वाला पढ़ लो बाद में। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं ताकि हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाए ना, ठीक है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी रीडिंग है और ट्रांसलेशन है, सही ट्रांसलेशन। अच्छा, अब तमारीन आ गई। शबाना है? शबाना? जी जी ठीक है, ओके, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए तमारीन। अजीब तमारीन एक्सरसाइज। हेलो, ये और भी कोई शबाना है क्या यहाँ पर? जी मैं भी शबाना समझी, फ्री मेरा हूँ। नाम ये पुकारा आपने। जो शबाना अभी मैंने बुलाई है रंगीला है जी अच्छा मैं हूँ। अच्छा, तो मैंने शबाना रंगीला, आप पढ़ लें, अभी मुझे तो पूरा नाम लेना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। चलिए आ जाइए। तमारीन अजीब अनिल अस्साइलतिल, क्या है? चलिए आप यहाँ से पढ़ लें, कोई बात, यहाँ से पढ़ लें, जरूरी नहीं है ये पढ़ने, ये ऑप्शनल है, ठीक है, यहाँ से पढ़ लें। मिन ऐना अंता, अंता अंता मिनल, नहीं, आप इसका पहले मीनिंग करें ना, मिन ऐना अंता। अच्छा, मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो, तब आप जवाब दे सकती हैं आप कहाँ से हैं। जी जी हाँ, क्या बोल रही हैं? अना मिनल हिंद। अना मिनल हिंद, वेरी गुड। अना, मैं हिंद से हूँ। तो पहले आप उर्दू में या इंग्लिश में जवाब बना लें और फिर उसको अरबी में ट्रांसलेशन कर लें, सबसे आसान तरीका है। अना मिनल हिंद, जो भी लैंग्वेज आपको आसान लगती है उसमें आप कर लें पहले। अंता मिनल, अंता, आ अलग है और अंता अलग है। अंता मिनल फिलिपीन, अंता मिनल फिलिपीन, क्या आप फिलीपीन से है? क्या फिलीपीन से है? दोबारा सवाल कर लिया उसने, अब क्या जवाब देंगे? क्या आप फिलीपीन से है? नाम, अना मिनल फिलीपीन। तो आप दो कंट्री से हैं, आप हिंद से नहीं, भी हैं, दो कंट्री से नहीं। तो अच्छा, फिर आप यहाँ पे क्या नाम नहीं बोले, ला बोलेंगे। ला अन्ना मिनल हिंद, ला फिलीपीन, ला अन्ना मिनल हिंद, तो आप सिर्फ यहाँ पे ला लगा देंगे, अन्ना मिनल हिंद हो जाएगा, ठीक है ना। नाम नहीं लगाना क्योंकि आप तो हिंद से हैं, तो फिलीपीन से तो नहीं ना, फिर नाम आ के जवाब में नाम या ला लगाना होता है, जो भी आपको सही लगे वो लगाएं। अच्छा, नंबर 3, माशाल्लाह बहुत अच्छा कार्य है। मन मिनस सीनी, क्या आप चीन से है? मन मिनस सीनी, मन का मीनिंग क्या होता है? मन, आप ना, मन का मीनिंग कौन होता है? कौन चीन से है? अब देखिए, मन भी आ गया और मिन भी आ गया, ठीक है ना, दोनों आ गए, मन भी और मिन भी आ गया, तो मिन के ऊपर भी सुकून होता है, वो आगे मिलाने के लिए जबर उसने ले लिए, ठीक है, तो मिनस सीनी हो गया। अब बताइए कौन चीन से है? चाइना से कौन है? अम्मारुन, आपको याद नहीं है ना, अम्मारुन, यहाँ पर आपने अम्मारुन मिनस सीनी, अम्मारुन चीन से है, तो अम्मारुन मिनस सीनी, बस मन का जवाब आपने अम्मार लिख दिया, कितना इजी है। मिनस सीनी वही उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, कॉपी करें और पेस्ट कर दें। आगे क्या है? मिन ऐना हामिदुन, मिन ऐना हामिदुन, हामिदुन कहाँ से है? अब ये नहीं बोलेंगे हामिदुन कहाँ से, हामिद कहाँ से, हामिद कहाँ से है? उर्दू में हम हामिदुन तो नहीं बोलते ना, उर्दू में हम हामिद बोलते हैं। हामिद कहाँ से है? जी हामिद कहाँ से है? कोई बात नहीं। मैम जी जी बोलिए। हामिद मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए, चलिए पूछिए, लेकिन ऐसे इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है इस तरह बीच में ना, लेकिन आप पूछ लें अभी, कोई बात नहीं, अभी आप पूछ लें। मैम जैसे ये बोल रहे हैं, तो मैम हमें ये अमारून चीन से है। तो अमार चाइना से है, चाइना से है। तो आपने क्या पूछा, सवाल क्या आपका? कट गई थी आवाज। मैम जैसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें मुझे मतलब जब मैं इनके आंसर करती हूँ तो मुझे यही थोड़ा डाउट होता है कि जैसे ये पूछ रहे हैं मन मिनस सीनी, मतलब कि कौन चीन से है, तो हमने जैसे अम्मारून लिखाई तो ये हमने अपनी तरफ से ये आंसर बना दिया कि मतलब ये
कुछ चैप्टर में कुछ क्या कुछ समझ नहीं आता, ये इसका आंसर कैसे दें? तो चैप्टर में क्या है, चैप्टर में आप देखें ना कि चाइना से कौन है, देखें चाइना से कौन है, यहाँ पे सब सवालों के जवाब दिए हुए हैं। ये देखें वमिन ऐना अम्मारुन, अम्मार कहाँ से है, तो अम्मार जो है वो कहाँ से, जवाब क्या है, हुवा मिन अस्सीनी। तो आप अभी यहाँ पे हुआ नहीं लिख सकते जवाब में, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने मन से सवाल किया है। तो मन जब आता है ना तो फिर मन का जवाब उसका आंसर करना पड़ता है, ठीक है, उसका आंसर नाम लेना पड़ता है। मैम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट मैम, यू जस्ट गो अहेड। अभी आपको समझ आ गई, आप पीछे लेसन में यस मैम, समझ आ गया मैम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम। अभी पढ़िए जो पढ़ रही थी, मिन ऐना हामिदुन। मिन ऐना हामिदुन, हामिद कहाँ से है। हामिद अल हिंद से, इंडिया से है। हाँ, मिनल हिंद ना, मिनल हिंद। अच्छा, हामिदुन मिनल हिंद। वेरी गुड। मिनल हिंदी, मिनल हिंदी। वैसे तो हिंदी कहते हैं, अल हिंदी कहते हैं, लेकिन मिन की वजह से आपने कसरा उसको देना है ताकि आपको आदत पड़े ना कसरा पर लगाने की। उस पे जर आ गया है जी, मिनल हिंदी। माशाल्लाह। ऐना ज़हाबा अब्बास, अब्बास कहाँ गया है। और ज़हाबा अब्बासुन मिनल मुदीरी। ज़हाबा के साथ इला लगाएंगे ना, मिन नहीं लगाएंगे। मैंने शुरू में बताया था कि ज़हाबा के साथ इला आएगा, ठीक है ना। अब्बासुन ज़हाबा इलल मुदीरी। ज़हाबा अब्बासुन इलल मुदीरी, मुदीरी, ठीक है, नॉट मुदीरी, मुदीरी नहीं बोलना, मुदीरी, ठीक है ना, मुदीरी, अल मुदीरी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6, आज़हबा दो अलग, आज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी। क्या अली भी गया है प्रिंसिपल के पास। हाँ, क्या भी की जरूरत नहीं है, क्या अली प्रिंसिपल के पास गया है, तो आप क्या जवाब देंगी। अली कहाँ गया था। नहीं, अली कहाँ गया था। नहीं, अली ज़हाबा अलीयुन कहाँ गया। ज़हाबा अलीयुन, ज़हाबा के साथ इला लगाएंगे, ज़हाबा अलीयुन, आगे ज़हाबा अलीयुन इलल इला लगाएंगे, ज़हाबा इलल मिरहादी। देखिए बार-बार इसको ना बेड बुक बनाएं इसको, बाकी चीजें छोड़ें, जिंदगी से निकालें फजूल चीजें, और इसको बार बार पढ़ें ताकि आपको वोकैबुलरी जो ना इसकी अच्छी तरह, मिरहात क्या होता है, हमाम क्या होता है, ये सारी चीजें, क्योंकि हर सबक में आपके नए नए वर्ड्स आगे आ रहे हैं, तो फिर वो बहुत जमा हो जाएंगे, साथ साथ याद करें, ठीक है। वैसे आपने बहुत अच्छा किया, आई एम वेरी ग्लैड। ओके, बहुत खुशी है मुझे कि आपने इतना अच्छा पढ़ा है इसको, और अल्लाह ताला आपको और भी ज्यादा दे, आमीन इंशाल्लाह। और डरा बिल्कुल ना करें, मैं आपकी ना बिल्कुल बहनों की तरह हूँ, और मैंने अपने नाम के साथ देखें कि उस्ताजा वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ, सिस्टर शमीम, तो वो मैंने क्यों लगाया हुआ है, ताकि एक उस्तादा का बड़ा वो एक रोब सा होता है लफ्ज में ना, तो वो बच्चे डर जाते हैं, तो मैंने कहा मुझे नहीं लगवाना आगे उस्ताजा। सिस्टर लगाएं, मैं आपकी बड़ी या छोटी बहनों या बेटियों की तरह, जो भी माओ की तरह, जैसे भी समझ लें, सही है, बहनों की तरह समझ लें, जैसे भी समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब इसी को करेगा। हाँ जी, आपसे अच्छा लिखा है, देखिए बाकी लोग म्यूट करें। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा जी, आप क्वेश्चन कर लें। ये ना ला ज़हाबा इलल मिरहादे, तो अपन इसमें अलीयुन भी लिखेंगे, ला ज़हाबा अलीयुन इलल मिरहादे। अली भी लिख ला ज़हाबा भी लिख सकते हैं, अलीयुन भी लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास चॉइस है मैम। हाँ, अनम्यूट करें अपना भी, बाकी लोगों के माइक मैंने भी म्यूट किए। चलें, अनम्यूट कीजिए सिस्टर, आप जो बोल रही थी। मैम वो एक क्वेश्चन था, ये जो लास्ट में लिखा था, मतलब कि अज़हबा अलीयुन इलल मुदीर, तो ला हुआ ज़हबन ऐसे नहीं, हुआ भी तो लग सकता है। हुआ भी लग सकता है, हुआ इलल मिरहादी, लेकिन ज़हाबा लाना जरूरी है, फेल लाना जरूरी है,
देखें अगर हुआ आप ज़हबा इलल मिरहादी, देखें, आप देखें मेरी बात सुने, अगर आप ला हुआ कर देती हैं हुआ फिल मिरहादी तो उसका क्या मतलब है? हुआ फिल मिरहादी। अब इसका मीनिंग करके देखें क्या होता है। हाँ, इसका मीनिंग करें, नहीं वो कहाँ है, वो टॉयलेट में है। वो पूछने सवाल में पूछे वो कहाँ गया है, तो आपने जवाब देना है कहाँ गया, उसका जवाब देना है। वो टॉयलेट गया है, गया है, तो वर्ब जो है वो तो आपने लगाया ही नहीं यहाँ पे। अच्छा ऐसे हो सकता है कि हुआ ज़हबा इलल मिरहादी। नहीं, दोनों नहीं हो सकते, या तो आप ज़हाबा लगाएं या फिर हुआ लगाएं, ठीक है ना। लेकिन ज़हाबा लगाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज़हाबा जब लगाएंगी ना तो उसमें वर्ब भी आ जाएगा और हुआ भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी उसमें। तो आप क्या करेंगी, ला ज़हाबा ज़हाबा, अब ज़हाबा लगाएंगी तो उसके अंदर हुआ है जो कि कहाँ जा रहा है, अली की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ला ज़हाबा फिल मिरहादी, या आप ये भी कह सकती हैं ला ज़हाबा अलीयुन फिल मिरहादी, तो जैसे चाहे आपका दिल करे। ला ज़हाबा, लेकिन ज़हाबा लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ज़हाबा आया है, तो आप यहाँ पे इसको सिर्फ हुआ के साथ नहीं कर सकते, आपको ज़हाबा लगाना है। ला ज़हाबा फिल मिरहादी, तो ज़हाबा का मतलब होगा हुआ ज़हाबा, नहीं वो गया है, वो टॉयलेट गया है, तो सिर्फ ज़हाबा भी लगा दें और अलीयुन भी लगा दें, दोनों चलेगा। लेकिन हुआ सिर्फ हुआ नहीं चलेगा कि आप हुआ लगा दें और ज़हाबा लगाएं नहीं, ये नहीं चलेगा, इससे मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, और कौन सी सिस्टर ने अभी करना है, जो शबाना दूसरी वाली है जो करना चाह रही थी वो जी कर जी। जी, आप आ जाएं, करने जल्दी जल्दी, बाकी लोगों को देना है थोड़ा टाइम। जी, मिन आइना अंता, आप कहाँ से हो? आना मिनल हिंद, हिंदी, आना मिनल हिंदी, क्योंकि मिन लगा है ना तो हिंदी होगा। जी जी जी, ठीक है। अल हिंद जब कहते हैं उससे पता नहीं चलता आपने पेश लगाई है, जेर लगाई है, क्या लगाया। तो अभी चूंकि आप अर्ली स्टेज पे हो ना तो आपको जरूरी है लगाना। आगे अंत मिनल फिलिपीनी, अंत मिनल फिलिपीनी, क्या आप फिलीपीन से हैं? ला आना मिनल हिंद, नहीं मैं हिंदुस्तान से हूँ। मिनल हिंदी। आगे नंबर 3, मन मिनस सीनी, कौन चाइना से है? अम्मारुन मिनस सीनी, अम्मार चाइना से है। मन आइन हामिद, हामिद कहाँ से है? हामिद हामिद कौन बताएगा हामिद कहाँ से है? इंडिया से। हिंद, हामिद इंडिया से। मिनल हिंद, हामिद मिनल अल हिंदी, हामिद लगाएंगे, सिर्फ हुआ लगाएंगे मैम, नहीं हुआ भी लगा सकते हैं, बट हामिद लगाएंगे, हामिद भी लगा सकते हैं, तो हामिद के ऊपर कुछ लगाना भी होगा ना लास्ट में। हामिदुन, आगे क्या होगा? मिनल हिंदी, मिनल हिंदी। अच्छा नंबर 5, आइना ज़हबा अब्बासुन, अब्बास कहाँ गया? कहाँ गया है? अब्बास कहाँ गया? अब्बास कहाँ गया था? मुदीर की तरफ गया था ना जी। ज़हबा अब्बासुन इला मुदीर, ठीक है। ज़हबा अब्बासुन इला मुदीर, ज़हबा अली मुदीरी, मुदीरी। हाँ आगे, ज़हबा अलीयुन इलल मुदीरी, क्या अली मुदीर की तरफ गए हैं? नाम नहीं, ला ला अली, ला हुआ, ला ज़हबा अलीयुन इला अल मिरहादी, मिरहाद।
ला ज़हबा अलीयुन इलल मिरहादी, इसकी जगह आप मिरहाद लिख देंगे, ठीक है ना, और आ की जगह आप ला लिख देंगे, बाकी वही का वही लिख देना, ज़हबा अलीयुन इलल मिरहादी। तो आसान करें, आ की जगह आपने ला लिख दिया और उसके बाद ज़हबा अलीयुन इलल मिरहादी, सिर्फ ज़हबा भी लिख देंगे। ज़हबा का लफ्जी मीनिंग ही वेंट, गया, यस वो गया। ज़हबा के अंदर देखिए यहाँ पे अली यून आ गया, ठीक है, अली गया, ठीक है ना, लेकिन जब अली नहीं होगा तो फिर ज़हबा का मतलब होगा ही वेंट, वो गया, ठीक है ना। तो दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ला ज़हबा अली यून भी कह सकते हैं, ला ज़हबा इलल मिरहादी भी कह सकते हैं। तो अगर आप अली नहीं लगाएंगे तो हुआ ज़मीर उसकी जो होगी वो उसका फाइल बन जाएगी, डूअर बन जाएगी, ठीक। अच्छा जी, काम करने वाला कौन है, फिर वो हुआ हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट सिस्टर आ जाएं जो बहुत विलिंग हो रही है पढ़ने के लिए। हाँ जी, नाम बताइए। हाँ ज़ेबा जी, ज़ेबा आ जाइए आप। इकरा वक्तुब माज़ती अवाखिरिल कलिमाती, read and write each of the following words, vocalizing its last letter. ठीक है। अल-गुरफती, गुरफती, अल-गुरफतु, the room, minal गुरफती, from the room, minal hamami, from the bathroom, al mirhazu, the toilet, ilal mirhazi, to the toilet, al yabanu, the Japan, al Philippines। देखें दा लगाएंगे यहाँ पे, नो दा जापान कहते हैं कभी नहीं कहते ना, जापान कहते हैं ना सिर्फ, तो हम क्या कहेंगे, जापान ही कहेंगे, अल जापान, दा जापान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, हालांकि अलिफ लाम लगा हुआ है, लेकिन इसको हम दा जापान नहीं कहते, सिर्फ जापान कहते हैं, और इसको फिलीपीन, दा फिलीपीन नहीं कहेंगे, फिलीपीन कहेंगे। अल फिलीपीन, फिलीपीन, मिनल हिंदी, इंडिया, फिलस्तीनी, फिलस्तीन, चाइना। फिलस्तीनी का मतलब क्या होगा, चाइना, सिर्फ चाइना, चाइना से, टू द चाइना, टू द चाइना, टू द चाइना, टू द चाइना, या चाइना की तरफ, ठीक है, चाइना की तरफ, मिनल हिंदी, हिंदुस्तान से, फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे दा इंडिया नहीं बोलेंगे, जब भी किसी कंट्री के नेम के ऊपर आएगा ना अलिफ लाम तो हम दा नहीं बोलेंगे, सिर्फ जो हमने कॉमन नाउन से, जो इनडेफिनेट नाउन से जो हमने डेफिनेट बनाया होता है ना, उसी को दा बोलते हैं। ये वाले तो वैसे ही डेफिनेट नाउन है, सारे कंट्रीज के नेम तो डेफिनेट होते हैं। अलग ये डेफिनेट नाउन्स कौन कौन से होते हैं, आप देखें ना, किसी भी इंसान का नाम डेफिनेट होता है, किसी भी कंट्री का नाम, सिटी का नाम, ये डेफिनेट नाउन होते हैं। और मैंने बताया कि प्रोनाउन जो होते हैं, हुआ वगैरह, जो नाउन की जगह यूज होते हैं, वो भी डेफिनेट नाउन होते हैं, तो उनके साथ भी आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते ऊपर, और न दा लगा सकते हैं। तो दा सिर्फ वहां लगाना है जैसे अल किताब, अल मदरसा, अल हमाम, नॉन लिविंग, हाँ नॉन, यानी ऑब्जेक्ट्स वगैरह जितनी है नॉन लिविंग, तो उनके साथ आप कर सकते हैं। शहर और कंट्रीज के नाम के साथ, अब ये आमिना के साथ क्या हम लगाएंगे, दा आमिना कहोगे, नहीं कहेंगे, दा मोहम्मद नहीं कहेंगे। इसी तरह जापान के ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, तब भी हम दा नहीं लगेंगे सिर्फ। अच्छा, अब यहाँ पे रीड करना है, इस चीज को रीड करना है। नेक्स्ट सिस्टर आ जाए। मैम हम पढ़ लें। मैम आसिफा पढ़े। पढ़िए, नाम बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? आसिफा। आसिफा, आप पढ़िए। इकरा वक्तुब मिन आइना फातिमा तू, फातिमा कहाँ से है? हिया मिनल हिंदी, वो हिंद से है।
हिया किसकी जगह आया है यहाँ पे? प्रोनाउन किसकी जगह आ रहा है? फातिमा की जगह। फातिमा की जगह। फातिमा जो है वो आपका फेमिनाइन है, तो आपका ये भी आपका मोनस हिया आया है, फेमिनाइन आया है। चलिए आगे। खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली, मुदर्रिस गए फसली क्लास से निकले, क्लास से हाँ। निकले। खरजा का मतलब क्या होता है? ही लेफ्ट, निकलना, यानी वो निकल गया है। खरजा का मतलब है ही लेफ्ट, ही एग्जिटेड। तो टीचर कहाँ से निकले हैं? क्लास से निकले हैं। खरजा के साथ देखिए मिन आ रहा है, खरजा के साथ हमेशा मिन आता है, और ज़हाबा के साथ इला आता है। वज़हबा इलल मुदीरी, और गए प्रिंसिपल की तरफ। और वो गए प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है, आगे पढ़िए। ज़हबत ताजिरु इला दुकान, ताजिर गया दुकान की तरफ। खरजा हामिदुन मिनल गुरफती, हामिद गया रूम, हामिद निकल गया रूम से। वज़हबा इलल हम्मामी, और गया वॉशरूम की तरफ, बाथरूम। ठीक है, आप निकला भी कह सकती है ना, निकला। हामिद निकला कहाँ से? कमरे से, और गया हमाम की तरफ। ठीक है जी। तो आगे नंबर 5। मन खरजा मिनल फसली, क्लास से कौन गया? हम आंसर भी करें? हाँ, आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपकी जगह आपके साथ किसी और का भी माइक खुला हुआ है जिसमें से शोर आ रहा है। मन खरजा मिनल फसली, क्लास से कौन गया? अल मुदर्रिसु खरजा मिनल फसली। गुड, वेरी गुड। मन की जगह उसका नेम ले देंगे, अल मुदर्रिसु खरजा मिनल फसली। मन आ जाता है तो वहां पे नाम लिखना, फिर आप हुआ नहीं कह सकते, फिर आपको नाम लगाना जरूरी है। तो पीछे की बातें भी याद रखा करें। ठीक है, अभी कोई सिस्टर और आ जाए। आजान कौन है? आजान कोई बच्चा है? आजान फहद भी है, फरा है। फरा जी कौन है? अच्छा, फरा आप पढ़ेंगी? मैम हम पढ़े अंजुम परवीन। अच्छा, पढ़ लीजिए। अंजुम आप पढ़ लें, बाकी लोग म्यूट करें या मैं करूं आप सबको अभी फिर दोबारा? अंजुम आप अनम्यूट करें, अंजुम परवीन। अंजुम आपके पास बहुत शोर आ रहा है पीछे, आप उस शोर को कम करें थोड़ा। अभी नहीं पढ़ पाएंगे, हम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुरान वो बैठे वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, सही है। अच्छा चलें, पढ़ लें, कोई बात नहीं। 2-3 लाइनें आपने पढ़नी है, पढ़ लें, शोर के साथ ही पढ़ लें। मिनल मदरसती वज़हबा इला सूक, स्टूडेंट वॉइस क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। तालिब इल्म मदरसे से निकला, और गया सूप के मानी मार्केट बताया था ना, फिश सूप जो भी है, जो खदीजतु मिनस्सीनी, खदीजा चीन से है, जापान, और जापान से। ठीक है, अगर इस तरह का शोर हो ना तो फिर प्लीज आप कुछ इस तरह का करें कि आप शोर ना आए वहां से, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है फिर।
اور چلیں ٹھیک ہے. اب نیکسٹ سسٹر آ جائیں, آگے والے لفظ پڑھتے ہیں ہم. یہ کون کون سے ورڈ ہم نے پڑھے اس دفعہ؟ کون آئے گا بتا دیں ابھی. عائشہ بہت ساری ہیں کلاس میں, آئی فون والی عائشہ جو ہیں یہ آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نمبر 1 ہے الکتابو. نہیں یہاں سے کریں دا فی الفراغی, آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اوکے. نمبر 4 دا فی الفراغی فی ما یلی حرف جر مناسبن. حرف جرن. اوکے ٹھیک ہے نا, تشدید کے نیچے ہے نا, تشدید کے نیچے ہے نا 2 زیر تو زیر پڑا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حرف جرن مناسبن. 4 words, fill in the blanks in each of the following sentences with a suitable preposition. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ preposition کہتے ہیں. یہ جو حرف جر, حروف جارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حروف جر. اور یہ کون کون سے ہم نے پڑھے ہیں؟ من پڑھا ہے. من. ہاں. الا. من کا میننگ کیا ہوگا؟ on. پر یعنی. نو. من کا میننگ کیا ہوگا؟ من. from. الا کا میننگ. Okay. الا کا میننگ to. فی کا مطلب ہوگا ان. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں جا کے ان کا, آپ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھتی ہیں آپ, اس میں فی الا من سب آتا ہے. تو وہاں جا کے یہ ورڈ چیک کریں اور ان کا میننگ دیکھیں کہ کیا کیا میننگ بنتا ہے. من السمائی اور الی السمائی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. آسمان سے بارش ہوتی ہے. من السمائی آسمان سے بارش ہوتی ہے. الی السمائی جو اعمال ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ فرشتے جو بھی ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں ہمارے اعمال لے کے. تو الا کا مطلب ہے ٹو دا. اور میم آپ نے من کا کیا بتایا؟ من کا مطلب سے. یا انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے فرام. من کا میننگ فرام ہے. ٹھیک ہے. الا کا مطلب ہے ٹو. انہوں نے آپ کو چیک کر دیا. اس میں فرام کیوں آیا ہے؟ لائک مطلب من تو سے تھا. تو فرام بھی انگلش میں فرام ہے نا. اوکے چلے آپ اردو میں کر لیں. من کا مطلب سے, الا کا مطلب طرف, فی کا مطلب میں, الا کا مطلب اوپر یا پر. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے انگلش میں لکھا ہے. صحیح ہے. تو آپ اردو میں یاد کریں یا انگلش میں کریں, آپ کے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ذرا ان کو بتائیے انگلش میں, اور آپ ان کو اردو میں بتا دیں جو بھی پڑھ رہی ہیں. عائشہ اردو میں بتا دیں. میم ہم پڑھ کے بتائیں. عائشہ جو پڑھ رہی تھی نا. جی میں اوکے. من کا مطلب ہے میں, سوری من کا مطلب ہے فرام سے. یہ الا کا مطلب ہے کی طرف یعنی ٹو. فی کا مطلب ہے ان یعنی میں. الا کا مطلب ہے پر, آن. بالکل ہے. تو انگلش میں بھی آنا چاہیے, اردو میں بھی آنا چاہیے, کیونکہ آپ سب انگلش پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں, تو آپ کو انگلش میں بھی ان کے میننگ. تو انگلش میں فرام, ٹو, ان, آن ہے نا, انڈر, یہ سارے پریپوزیشن ہوتے ہیں. اور اب اس کو ان کو فل کرنا ہے. صحیح لگائیں, صحیح لگائیں. نمبر 1 الکتابو فی المکتبی. گڈ. فی المکتبی ڈیسک کے اندر ہے. کتاب ڈیسک کے اندر ہے. ان دا ڈیسک. کتاب الکتاب فی المکتب علی المکتبی. الکتاب علی المکتب. مکتب کے اوپر ہوتی ہے نا کتاب, جی ڈیسک کے اندر نہیں ہوتی. اچھا تو علی المکتبی ہو گیا. نیکسٹ آگے. نمبر 2 الطالب. الطالب من الفصل. نہیں, من تو آتا ہے, من تو آتا ہے جا کے خرجا کے ساتھ. جی تو یہاں تو الطالب فی الفصل. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے یہاں پہ؟ ذہبہ آ گیا. اور ذہبہ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ذہبہ حامد علی الجامعہ. علی الجامعہ تھی. من الجامعہ. الال آئے گا. الال میم الال ہے نا. الال آئے گا. ٹو دا یونیورسٹی. ذہبہ میم آپ بول کے تو ہمیں نیم
वॉइस कर लेना। हामिदुन इलल जामिया। अच्छा, आप लोग थोड़े खामोश रहें कि जो माइक पे उनको काम करने देना, उनको समझ आए कि वो क्या कर रही हैं। ज़हबा हामिदुन इलल, ज़हबा के साथ मैंने बताया था इला आता है हमेशा, ज़हबा के साथ इला लगाना है, और खरजा के साथ क्या लगाना है यहाँ पे? ज़हबा हामिदुन इलल जामियाती। यहाँ पे नंबर 4 खरजल मुदीरू अलल मदरसा। खरजा, मदरसती। मैंने बताया ना कि खरजा के साथ क्या आता है? मिन आता है। खरजल मदीरू मिनल मदरसती। मिनल मदरसती। मुदीर निकले, कहाँ से निकले? नंबर 5 दहबा मुहम्मदुन मिनस्सैनी इलल यमन। मैंने अभी आपको बताया था ज़हाबा के साथ इला यूज होता है और खरजा के साथ मिन यूज होता है। ठीक है, तो ज़हाबा जब आ गया तो आपने यहाँ पे इला ही यूज करना है। ठीक है ना? दहबा जी मोहम्मदुन इलस्सीनी, दहबा मोहम्मदुन इलस्सीनी मिनल याबान, आएगा फिल याबान, मिनल याबान, मिनल याबान। देखिए सिस्टर आयशा, आपको मीनिंग्स याद नहीं, देखें मीनिंग्स आपको याद नहीं, पहले आप मीनिंग्स याद करें और फिर जब मीनिंग याद हो जाएंगे आपको अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर आप इसमें लगा सकती हैं। और एक बात और याद रखें कि खरजा के साथ यहाँ पर मिन आएगा ऑलवेज। जब खरजा आ गया आपके जुमले में तो मिन आएगा, जब ज़हाबा आ गया तो इला आ गया। अब नेक्स्ट सिस्टर करेंगी तो आप सुनेंगी गौर से। किसको अच्छी तरह करनी आती है ये एक्सरसाइज? वो आए जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं। हाँ आ जाए, जिन्होंने अपना नाम लिया वो आ जाए, जो नाम नहीं लेते वो आ जाए। मिन से इला तरफ, फी में अला पर। नंबर 1 अल किताबु अलल मक्तबी। नंबर 2 अत्तालिबु फिल फसली। नंबर 3 ज़हबा हामिदुन इलल जामिया। ज़हबा के साथ इला, हाँ ज़हबा के साथ इला। नंबर 4 खराजा अल मुदीरु इलल मिनल मदरसती, खराजा के साथ मिन। गुड, वेरी गुड। नंबर 5 ज़हबा मुहम्मदुन इलस्सैनी मिनल याबानी। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर आपने इला लगा दिया तो बाकी मिन ही रह गया ना। मिन को यहाँ से लगा। फ्रॉम जापान, मोहम्मद गया किधर? चाइना की तरफ। चाइना की तरफ, फ्रॉम जापान से, यानी पहले वो जापान गया और फिर वहां से वो चाइना की तरफ गया, ये मतलब है। चाइना की तरफ। अच्छा, अब ये वर्ड हैं और कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? जल्दी से आ जाए जिसको। हाँ जी पढ़िए। उम्मे हसन, उम्मे हसन आपने पढ़ लिया है ना, प्लीज दूसरों को मौका दें थोड़ा सा। ठीक है, आपसे मैंने काफी सारा पढ़वाया था। कोई और आए जिन्होंने पढ़ना है अभी? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आए। मैं पढ़ूं? फौजी आप आ जाए। फौजी आपने पढ़ा नहीं? फौजिया रेहान ने पढ़ा है ना? पढ़ा है फौजिया रेहान ने। अभी कोई और आए? जी आमिना पढ़ चुकी हूं। अपना नाम बताइए। आमिना। आमिना, ठीक है, आमिना अशरफ जो भी है, आइए पढ़िए। अल कलिमातुल जदीदतु, न्यू वर्ड्स। अल मदरसतु, अल फस्लु, अल हम्मामु, अल मिरहादु, अल मत्बखु, अल गुरफतु, अल जामिअतु, अस्सूकु, अल याबानु, अस्सीनु, अल हिंदू, अल फिलिपीनु, फिलिपीनु, अल मुदीरु ذهب خرج, अल मदरसतु school, the school, the classroom, अल फस्लु the classroom, अल हम्मामु the bathroom, अल मिरहादु the toilet, the washroom, अल मत्बखु the kitchen, अल गुरफतु the room, अल जामिअतु the university होता है क्या? यूनिवर्सिटी।
السوق the market, اليابان Japan, الصين China, الهند India, الفلبين Philippines, المدير the headmaster, ذهب he left, خرج he went. He went, left नहीं, went होगा. ذهب he went. खरजा he left. खरजा he left. ज़हबा के साथ कौन सा preposition आता है आगे? इला. और खरजा के साथ मिन आता है. मिन आएगा. अगर मैं यहाँ पर मिन लगा दूं तो क्या चेंजिंग आएंगी? क्या हो जाएगा? मिनल मदरसा मदरसती ती हो जाएगा. यहाँ पे कसरा आ जाएगा, ये गिर जाएगा. मिन लगाने से उसने आपका जेर दे दिया, क्योंकि ये आमिल है, अमल कर रहा है, ये इसके ऊपर अमल कर रहा है. ठीक है ना? फिल मतबा खी, फी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिल मतबा खी, मतलब हाँ किचन में. मिनल याबानी, ठीक है ना? इलल याबानी भी कह सकते हैं, मिनल याबानी भी कह सकते हैं. इलल मुदीरी, ठीक है? फिल फसली, फिल फसली चेंज हो जाएगा. फिल गुरफती, मिनस्सीनी, ज़हबा इला, ज़हबा इला, खरजा मिन. सही है ना? तो इस तरीके से फिलिबीन पढ़ा जाता है. अच्छा, अब ये 4 हरूफ हमने पढ़े, इन चारों के मीनिंग आपको आने चाहिए. कौन करेगा इनका अच्छी तरह के मीनिंग जल्दी से? एक सिस्टर आ जाए, मुझे क्लास बंद करनी है, जल्दी आए. जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आए. हम पढ़े? पढ़ लीजिए, नाम बताइए और पढ़ लीजिए. अकीला अहमद. अकीला ने नहीं पढ़ा, चलें पढ़े. फी मतलब फी का मीनिंग इंग्लिश, हाँ बताइए. फी का मतलब इन, ठीक है. अला का मतलब ऑन. मिन का मतलब से. और इला का मतलब टू. आपकी तो बेटी भी पढ़ती है, दोनों मिलके पढ़ लिया करें ना तो अच्छा याद हो जाता है. इला का मतलब टू, ठीक है ना? हम बताएं. अच्छा, ये नीचे वाला पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है? अकीला पढ़ें. ये मिन हुरूफिल जर्री, तशदीद के नीचे आ रहा है ना कसरा, तो जरी जेर पढ़ा जाएगा, जर्री पढ़ा जाएगा. समझ लें कि ये रा के नीचे ही जेर है, जर्री. ठीक है? अगर तशदीद के नीचे जेर आ रही है तो उसका मतलब है वो रा के नीचे ही आ रही है, तो वहां पे लगा देते हैं ऊपर ही. ठीक है? तो जर्री पढ़ा जाएगा. फी अला मिन. अच्छा, ये कितने हरूफ होते हैं? अगर आप इनको सीधे तरीके से याद करें तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे के सारे लिखवा दूंगी, और जितने भी कुरान में आते हैं. कुरान से बाहर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे. ठीक है? जो कुरान में जितने भी अल्फाज आते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको करवा दूंगी, लिखवा दूंगी, और आप उनको याद करेंगे. अभी आप 4 ही याद करें. फी में, अला ऊपर, मिन से, इला तरफ. मिन हुरूफिल जर का मतलब है कि हुरूफ जारा में से हैं. मिन का मतलब से, हुरूफ का मतलब हरफ की जमा है, और जर का मतलब होता है कसरा, यानी हुरूफ जारा में से हैं. और इनका काम क्या होता है? ये अपने बाद आने वाले नाउन के लास्ट लेटर के नीचे जेर दे देते हैं. इनका ये काम होता है. ठीक है? तो जो भी हुरूफ आएंगे हर एक का कुछ ना कुछ काम होता है. तो इनका काम हुरूफ जारा का क्या होता है? जेर देना होता है. और वो जेर कहाँ आती है? लास्ट लेटर के नीचे. सही है? चलिए ठीक है, दुआ कर देते हैं. अभी काफी है, टाइम काफी हो गया, रिकॉर्डिंग भी लंबी हो रही है, फिर तो मुश्किल हो जाती है. मेरे लिए खास दुआ करना, मेरा नाम लेके. तो मेरी डायलिसिस चलती है, मैं कभी काफी कमजोरी में हूँ. अकीला बात कर रही है? जी. अकीला कैसे कमजोरी है? आपको तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. आपके साथ तो आपकी बेटी डायलिसिस चलती है ना मेरी. अच्छा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे. अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा सिर्फ आप पढ़ाई में कमजोरी की बात कर रही हैं.
اللہ ताला अपनी आसानियां करे और इंशाल्लाह ताला आप जिसको जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपका ध्यान बीमारी कब बढ़ती है? जब हमारा ध्यान ज्यादा बीमारी की तरफ जाता है। बुढ़ापा कब आता है? जब हमारा ध्यान बुढ़ापे की तरफ होता है। ओ हम तो बूढ़े हो रहे हैं, हमारी तो इतनी हो रही है, बार बार शीशा देखना, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। बुढ़ापा इस तरह जल्दी आता है। भूल जाएं, अपने दिमाग को कहीं और लगाएं, कोई बुढ़ापा नहीं आने वाला। मैं पता है कितने साल की हूँ, 67 की हूँ मैं। लगता है आपको? बहुत से लोग आप में से हैरान हो जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने शायद मुझे आप लोगों को पढ़ाना है तो मुझे ताकत भी दी हुई है और मैं इन्हीं चीजों में बिजी रखती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोचती दूसरी तरफ कि मेरी एज क्या है। मेरे बच्चे बाद दफा मुझे याद कराते हैं कि तो आप थोड़ा कम काम किया करें, थोड़ा कम करें, लेकिन मुझे नहीं फील होता। माशाल्लाह अल्लाह ताला जितना मैं करती हूँ उतनी पावर और दे देते हैं। तो आप अपना ध्यान बटाएं, बीमारी की तरफ से दुआ करें। दुआएं जो होती है ना मुसीबतों को टालने वाली है और आपकी अपनी दुआ ज्यादा कबूल होगी। आप दूसरों से कहते हैं ना दुआ करें, अपने मरीज से तो खुद हमें दुआ करवानी चाहिए। मरीज की तो इतनी दुआ कबूल होती है कि हमें करवानी चाहिए। जो सफर पे जा रहा होता है उससे दुआ करवाते हैं और वो क्यों करवाते हैं कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो मरीज की भी दुआ कबूल होती है। तो आप अपने लिए खुद से, हम भी करेंगे, हम सब क्लास वाले जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं सब अपनी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। और देखिएगा आपको आसानी होगी। बस आप अपना ध्यान बटाएं। ज्यादा फिक्र लगाएंगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, फिक्र तो नहीं, लेकिन ये हर दूसरे दिन जाना पड़ता है ना मैम। वो तो जाना पड़ता है, वो तो मैं समझती हूँ आपकी। और उससे जो है ना मेरी हड्डियां जो है ना बहुत ज्यादा दर्द कर रही हैं। जी बिल्कुल, वो आसान काम नहीं है ना, आसान काम नहीं है। तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करे और अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला और आजला जल्दी आपको सेहत दे दे इंशाअल्लाह ताला। और जिस चीज की वजह से ये हो रहा है ना उस वजह को खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है? उस वजह को जो खत्म करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला रब्बना तक़ब्बल होमवर्क कौन सा होगा? होमवर्क आपका रीडिंग करें, यूरुफ जारा याद करें, एक्सरसाइजेस जो आई हैं, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है। मैं इंशाल्लाह इसके भेज दूंगी, इसकी कॉपी बना के जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कर दूंगी, सारी एक्सरसाइजेस में शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। मेरा जो काम है ये राइट करना है, रीड एंड राइट को नहीं करना। इसको आपने रीड और राइट नहीं करना, इसको आपने सिर्फ पढ़ना है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। और यहाँ पर ये जो है ये वाली एक्सरसाइज करनी है, नंबर 2 भी। और ये क्वेश्चन आंसर मस्ट है, ये करने हैं आपने, ठीक है? क्वेश्चन आंसर मस्ट है। अजीब अनिल असइलातिलातती ये जरूरी है, नंबर 1। ये नंबर 2 एक्सरसाइज जरूरी है। और फिर आपकी ये लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है मिन इला फी अला फिल करना। 3 एक्सरसाइजेज हैं और वर्ड्स मीनिंग तो आपको याद करने ही है, ठीक है? तो सूक का मीनिंग आपने को नहीं आता, नया वर्ड आया है, ठीक है? और ज़हाबा खराजा और इसी तरह से जो भी नए वर्ड आए हैं उनको आपने याद करना होता है साथ साथ, और पिछलों को रिवाइज करना होता है। दुआ कर लेते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। देखिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने बीमार थे ना, उनको भी अल्लाह ताला ने शिफा दी थी, उनको शिफा दी थी ना। उनकी दुआ पढ़े, उनकी दुआ। मुझे तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं उनकी दुआ याद करती हूँ। उनकी दुआ तो ये है ना, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये नहीं है उनकी दुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ नहीं है, तो दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, है ना रब्बी। ये वाली दुआ पढ़ें, कुरान मजीद में है, आप पढ़ें, कहीं से भी आप नबियों की दुआएं निकालें। जी पढ़ें, इसको पढ़ें, बड़ी सी बड़ी बीमारी को दूर कर देती है इंशाअल्लाह। अल्लाह पे भरोसा रखें, नाउमीद ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब काम संवारने वाले हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह। थैंक यू टीचर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैरन।